everyone to one of the most inspiring and interactive session before all of you. Before I start, I call Vice President Subhash Lahoti to remark the opening and welcoming speech for this beautiful day. Thank you, Ruchika. Good morning, all. Myself, Subhash Lahoti, Vice President of Rotary Ishan, and a very happy morning to all the Ishanians. I am very happy to see you all in a large number to attend today's session on my safety, my responsibility. I take the privilege to welcome our today's speaker, the First Lady Bodyguard of India, Mrs. Veena Gupta, to our Ishanya family and thanking her for accepting our invitation. Friends, we are very fortunate to have a celebrity profile with us as speaker, and she is going to enlighten her thoughts towards our primary responsibility for the basic safety of our family. As nowadays we are fully engaged and dependent on technology, we are captured by various antisocial elements in various ways and trapped in our so-called solitude digital world. Let's see how to balance out life emotionally, physically, and mentally. Let us all wait for small takeaways from Veena ma'am to safeguard our basic lifestyle. I am very thankful to our own Rotarian Sunita Navira and club admin team for identifying such a good speaker before us for this morning. I hope you all will enjoy today's session. Requesting our MOC, Ruchika ma'am, to proceed with the session. Thank you and have a nice day. Thank you so much, Subhashi. Friends, have you ever attended any self-defense workshop? Have you ever felt unsafe in metro, bus, cafes and remained silent? Have How many of you have ever experienced the following at some point in their lives? Fluid comments, groping, stalking, molestation? As a woman living in metropolitan, do you feel safe while traveling at night? Have you been cheated on WhatsApp? Cybercrime, cyberbullying? Have you ever felt the need to equip yourself with the basics of self-defense? Have you been duped on line fraud? So here we have answers to all these questions by our eminent speaker, Ms. Veena Gupta. So Ms. Veena Gupta is here already with us. Amidzas, a Gurgaon woman, Ms. Veena Gupta, the first lady bodyguard, who at the age of 49 stands tall among security services providers. Veena ma'am is the award-winning security service consultant who trains hundreds of women across the country in self-defense and self-security for free. She has completed several professional courses in security and martial arts. A sari-clad woman whose strength of mind and body belie her dainty size says that the idea of security being all about beefed up, muscular men dressed in black is a myth. She's also a certified trainer of Krav Maga and Israeli fighting system. She is a well-known lady as Lady Dabang Singh, who took an initiative to start Surakshit Bharat Abhiyan and launch an app, My Security, My Responsibility. Another feather in her cap that she has just opened an office in Singapore to go global. She is the founder of Seam Group Services as well. Oh my gosh, she is what not. She is a lead auditor, an author, TEDx speaker, life coach, MSTV, Rubaru Frame. She is CPTED specialist, a security practitioner, a self-defense trainer. Such an impressive multitasking lady in between us.
A big round of applause, Ms. Veena Gupta, for Ms. Veena Gupta. I wholeheartedly welcome her to guide us and throw light on her life journey, her achievements, her success mantra for all of us. Over to Ms. Veena Gupta. Thank you, Ruchika. Thank you very much for really good and a big introduction. Thank you. I'm so enlightened. It's my pleasure to be amongst all of you. तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. टाइम शायद हमें 1 घंटे का मिला है, बट मैं चाहूंगी कि मैं हिंदी में बोलूंगी क्योंकि मुझे सबने बोला कि हिंदी में बोले तो उससे 2 बातें होंगी. एक तो भावनाएं आएंगी हमारी, और जो रुचिका आपने बोला, मैं सिर्फ औरतों को नहीं, मैं आदमियों को भी प्रोटेक्ट करती हूँ. बल्कि ज्यादा मेरे पास जो केसेस आते हैं मेरे एनजीओ में, वो आदमियों की प्रोटेक्शन के लिए आते हैं. उसका 2 कारण है, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, कि आज जो लॉ है बहुत ही वुमेन के प्रो है. तो हमें अपने लड़कों को भी बचा के रखना है, उनको भी सुरक्षित रखना है. और चाइल्ड अब्यूज जो है पहले से और आज से भी 67% जो है बॉयज के साथ होता है देन गर्ल. क्योंकि हम लड़कियों को संभाल के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, लड़कों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इवन हिला के भी बोला जा कपड़े जाके बदल ले, तो ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं. तो इसलिए लड़कों के साथ ज्यादा अत्याचार हुआ है. तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के बातें करेंगे. तो तो हम लोग मैं चाहूंगी कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, वीडियो को ऑन रखें. और मैं क्विकली एक पीपीटी रन करूंगी, क्योंकि हम फैमिली की सेफ्टी की बात कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी, तो उसमें क्या होता है, जो ऑनर्स है वो हमारे ऊपर जाता है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें. इसमें कोई वुमेन की सेफ्टी की बात नहीं हो रही, आदमी की सेफ्टी की बात नहीं हो रही, एक कॉमन सेफ्टी की बात हो रही है कि घर में भी रह के क्या हम सुरक्षित हैं. तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आप सब लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग आंसर करें. कुछ क्वेश्चन आपने मेरे बिहाफ पे पूछ लिए, तो मैं ये पीपीटी क्विकली रन करूंगी ताकि एक बार लोग देख लें. और 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करती हूँ. ऑलराइट, मैं शुरू से क्विकली पढ़ती जाऊंगी, आप लोग सिर्फ एक नजर इसको देखें, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सॉरी, मैं जरा शुरू से चलाती हूँ इसको. ऑलराइट, आज हम बात करें कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं सिक्योरिटी के. आप लोग सिर्फ मुझे बाद में आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आप सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सारे बच्चों की पढ़ाई वर्क से घर से हो रही है, पेरेंट्स या माताएं जो हैं उनकी बच्चों की स्टडी में बिजी हैं, जो कंप्यूटर से एक्सपोज नहीं थी वो क्या कंप्यूटर पे आज सीखे काम करना सीख चुकी हैं. सारा दिन माताएं जो है मल्टीटास्किंग करती हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखती हैं, एक कमरे में वर्क फ्रॉम होम हस्बैंड कर रहे हैं या पिता कर रहे हैं. और ये जो मैं आपको साथ के साथ सिनेरियो भी दिखाऊंगी इसके बाद, कि हम एक घर में रह के भी कैसे अनसुरक्षित हो सकते हैं. तो हम बात करें न्यू नॉर्मल. आज हमारी लाइफ में ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि मतलब हमारे कैमरा बेडरूम्स में आ गए हैं, हम लैपटॉप लेके बैठे हैं, हमारा वीडियो ऑन है, हम वीडियो फोन अपना व्हाट्सएप भी वीडियो चैट करते हैं, फेसबुक पे चैट करते हैं. तो हमारे नए रिस्क आ गए हैं हमारी लाइफ में. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पीछे की जो स्क्रीन है, ये एक वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो है जो आज की सिचुएशन है पैंडेमिक की. जब तक चलेगी हमें इसके साथ जीना पड़ेगा. तो अब हम बात करते हैं सेफ्टी की. अब हम बात करें फैमिली की सेफ्टी की, क्योंकि हमारे साथ फैमिली में कौन आता है, एक फैमिली है, उसमें बच्चे हैं, आपके पेट भी हैं, स्टाफ भी है, नौकरानी है, गेस्ट भी हैं, एल्डर भी हैं. राइट, ये हमारी सुरक्षा के बारे में हम सब बात करेंगे, आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे. अब हम घर की बात करते हैं, सोचेंगे आप घर में कैसे हमारा एरिया अनसेफ हो सकता है. घर में किसी के गार्डन है, किसी के कमरा है, किसी का स्विमिंग पूल है, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी बाग है वो है. इंडोर में आता है आपका किचन, आता है जनरल एरिया, आता है ड्राइंग रूम, या जहाँ पे आपकी तारे बिछी रहती हैं, वर्क फ्रॉम होम में आप काम कर रहे हैं, कहीं पे चार्जर लगा है, कहीं पे हीटर लगा है, बाथरूम है, स्टोर है. आपके घर में एल्डरली पेरेंट्स भी हैं जो उसमें फंस के गिर सकते हैं. नेबरहुड में आपके साथ अगर फ्लैट है तो फ्लैट वाला दरवाजा है, या आपके आसपास पार्क है या रास्ता है या सड़क है, डिपेंड करता है आप कैसे रहते हैं. अब घर में रह के क्या सेफ्टी और हार्म हो सकते हैं. जो फिजिकल है, आप गिर सकते हैं, फर्नीचर की टिप लग सकती है, कोने लगते होंगे, काफी लोगों को कोना लग जाता है, कभी बेड का कोना, कभी टेबल का कोना. आपके शार्प एजेस होते हैं, आग लग सकती है, इलेक्ट्रॉनिक का ब्लास्ट हो सकता है, आप चोकिंग हो सकती है धुएं से, सफोकेशन हो सकती है, पॉइजनिंग हो सकता है.
अनसेफ स्लीपिंग हो सकता है कि बच्चे गिर जाते हैं, कभी कभी सोते, कभी कभी बड़े भी गिर जाते हैं। और आप छोटी छोटी चीजें, शॉर्ट सर्किट। आउटसाइड का थ्रेट क्या है कि आसपास आपके जो थ्रेट एरिया है, थ्रेट में क्या क्या आता है, जो आपके नोन लोग होते हैं ना, जो आपके ट्रस्टवर्दी होते हैं। मान लीजिए आपका घर का बहुत पुराना ड्राइवर है, बहुत पुराना नौकर है, नौकरानी है, गार्डनर है, धोबी है, प्रेस वाला है, कपड़े वाला है, डिलीवरी वाला है। आजकल तो हम डिलीवरी भी ऑनलाइन लेते हैं, रेगुलर लोग आते हैं। कई बार क्या होता है, हम एक ही जगह से डिलीवरी लेते हैं, तो हम लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। और हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अनसेफ हो सकते हैं मल्टी टास्किंग करते हुए घर में बैठे के भी। रॉबरी हो सकती है। अब रॉबरी कैसे होगी? आप लोग घर में बैठे हैं, आपकी नौकरानी है, ठीक है? आपने, आपके घर में कोई कैश आया, कोई भी डीलिंग हुई, कोई शादी हुई, ज्वेलरी लाई, तो आप आपस में फ़ोन पे बात करते हैं, जो आपको नहीं पता कोई सुन रहा है। आपने फ़ोन पे बात किया, "अरे यार, मुझे तो टाइम नहीं मिला ज्वेलरी लॉकर में रखने का, मुझे टेंशन हो रही है। अरे यार, मैंने" आप पैसे गिन रहे हैं, फ़ोन पे बात करें, तो आपका फ़ोन कौन सुन रहा है? आपका घर का भेदी। अब घर के मेड में जो आपका काम करता है, नौकरानी या नौकर, आपको क्या पता वो किन लोगों से मिलता है। हो सकता है आपके पड़ोस का जो स्वीपर हो, वो उसका पति हो, उसका जानकार हो सकता है कॉलोनी का धोबी हो, वो जानकार हो। तो कहने का मतलब है आपकी घर की जानकारी बाहर गई। दूसरा, जब आप घर से बाहर जाते हैं वेकेशन पे, तो आप लोग खुद शोर मचा के जाते हैं, मेड को बोलते हैं, "सुनो, तुम ना 2 दिन मत आना, मैं अपने हस्बैंड या फैमिली के साथ शिमला जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ।" आप उसको बता के जाते हैं, ठीक है? घर में लॉक लगाते हैं। दूसरा क्या है, आपका न्यूज़पेपर वाला आता है, रोज़ न्यूज़पेपर डाल के जाता है, तो पाइलन होता है, दूध वाला होता है, धोबी। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे के जाते हो कि मैं घर के बाहर जा रही हूँ, जा रहा हूँ। दूसरा, हम फेसबुक पे हैं, जैसे हम किसी घूमने गए, हमने पहले चेक इन किया, पिक्चर डाली, हम एन्जॉयिंग माय वीकेंड एट स्नो व्हाटएवर व्हाटएवर। ये जो आजकल के चोर हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, वो आपको फेसबुक से ट्रेस करते हैं, फेसबुक पे ढूँढते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे लेके उस तरह से आपके सामने पेश आते हैं। आप तो घूमने चले गए, पीछे से घर में ओल्ड पेरेंट्स को छोड़ गए, साथ में नौकर को छोड़ गए, तो सारा तो आपने घर में सब कर दिया और वहाँ से आपके चोर ने देखा आप फेस। तो आजकल बहुत ऑनलाइन का ज़माना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने खुद दी, तो ये हमारे आउटसाइड थ्रेट हो सकते हैं। अब हम घर में कैसे ध्यान रखें? छोटी-छोटी जो प्रिवेंशन है, वो मैं आपको साथ के साथ बताऊँगी कि आप अपने एक्सटीरियर जो है उसको, जो वीकनेसेस है उसको नोट करें, आपके पड़ोसियों को जानें, अपने दरवाज़ों को और खिड़कियों को बंद रखें। जब आप घर में नहीं हैं, आप किसी स्ट्रेंजर को घर में ना अलाउ करें। अब स्ट्रेंजर कौन होते हैं? मेरे लिए मेरा नॉन ड्राइवर भी स्ट्रेंजर हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब मैं वल्नरेबल हूँ, घर में अकेली हूँ और किसी को इन्फॉर्मेशन है मेरे घर में कैश पड़ा है, या किसी ने सुन लिया, या कोई किसी से दुश्मनी हो गई, आपने ड्राइवर को जॉब से निकाल दिया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, तो एक एक रिवेंज की भावना रहती है, तो आपके ये लोग आपके स्ट्रेंजर हो गए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको है ध्यान रखनी है। फिर आपका हो गया बाथरूम की सेफ्टी। आपके अगर ओल्ड चिल्ड्रन है, ध्यान रखिए पानी स्लिपरी ना हो, पानी ना हो, हमेशा सुखा के रखें। बच्चा इलेक्ट्रिक का अगर बटन दबा रहा है गीज़र का, तो उसमें करंट ना हो, उसके सारी चीज़ें अंदर कॉम्पैक्ट हो, कई बार तार लूज़ होती हैं, हमारे प्लग खुले होते हैं, स्विच खुली होती है, तो हमें ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है कि बाथरूम सुबह के नेवर लीव। छोटे बच्चे कभी भी अकेला ना छोड़ें, किसी के सुपरविज़न में छोड़ें। आप हर चीज़ को सुखा के रखें। तो ये छोटे-छोटे टिप्स जो है आप बाथरूम में रखेंगे। फिर आपका है, अब हम बात करते हैं कि हम वर्चुअल की बात करते हैं। कितने लोग इस आइकन को पहचानते हैं? मुझे बाद में आंसर कीजिएगा जब मैं वीडियो पे आऊँगी। ये सारे आइकन क्या आपको नहीं लगता हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं? दिख रहा है आपको ये? यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। कितने माँ-बाप हैं जब छोटे बच्चा खाना नहीं खाता, 3 साल के 3 महीने के बच्चे को यूट्यूब अपना ऑन करके पकड़ा देते हैं। वाइफ बोलती है, "सुनो जी इसको ये लगा दो, ज़रा यूट्यूब लगा दो, उसको कोई गाना लगा दो, कोई कार्टून लगा दो।" हम अपना मोबाइल भी उसको पकड़ा देते हैं, छोटे से बच्चे को। बच्चों का ब्रेन 90% डेवलप होता है जब पैदा होता है। तब भी हम बोलते हैं कि लड़कों को गुलाबी कलर पसंद नहीं है और लड़की को गुलाबी कलर पसंद है। तो क्या भगवान ने उनको सिखा के थोड़ी लिखा है? क्यों? क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है, वो सारी बातें सुनता है, 90% ब्रेन आपके साथ पैदा होता है। तो उसको ये सारी चीज़ें पता होता है। जब आप रिश्तेदार उसको देखने आते हैं उसको, तो आप उसके लिए, लड़के के लिए गुलाबी कपड़े नहीं लाते, आप नीला लाते हैं, बंदूक लाते हैं, बाइक्स लाती हैं। तो ये कुदरत का कोई करिश्मा नहीं है, ये हमारा करिश्मा है कि हमने बच्चों को बचपन में बता दिया जब वो पैदा हुआ कि तुझे नीला पहनना है, तुझे बाइक से खेलना है, तुझे फुटबॉल से खेलना है, क्रिकेट से खेलना है। लड़का मान लो लड़की की तरह कभी पिंक माँगेगा, डॉल से खेलेगा, तो आप उसपे हँसोगे कि भैया इसका सेक्स तो नहीं चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को अपने पेट में सिखाई हैं, तो बच्चा जब इन चीज़ों के साथ 3 महीने में, आपको लगता है छोटा-सा बच्चा है उसको क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बच्चे को सब पता है, वो यूट्यूब सीख रहा है, आजकल के बच्चे गूगल है। तो हम
जब अपने बच्चे, तो हमारे जो वर्चुअल न्यू नॉर्मल है वो हरासमेंट है। कई बार सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि छोटे बच्चे स्ट्रेस में लेके, आपने बच्चे को बोला कि आप कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, 11वीं का बच्चा है, स्ट्रेस है, कॉलेज नहीं जा पा रहा, कॉलेज का स्टूडेंट है, उसने कॉलेज नहीं देखा लॉकडाउन में 3 साल से, तो कहीं न कहीं दोस्त बनाएगा, आपस में आप खेल नहीं सकते, आपस में आपकी दूरियां हो गई हैं, तो आपका बच्चा ऑनलाइन है। ऐसे में ऐसे-ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चा फेसबुक पे किसी से बात कर रहा है, वहाँ पे एक लड़की है, उसने उससे बातें की, उस लड़की ने उसको बोला कि आप अपना ऐसा खोलो, वैसा खोलो, फलाना खोलो, वो लड़की नहीं, वो क्राइम होता है, वो साइबर क्राइम होता है कि वो कोई आपकी वीडियो बना रहा है, उस लड़के से, मतलब बहुत केसेस आते हैं, 11वीं-12वीं के जो बच्चे होते हैं, टीन्स बच्चे होते हैं, ठीक है? तो वो उसके बाद एकदम से पॉपअप होता है, उसको मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया, जो भी तुमने किया अब इसको वायरल कर देंगे, पैसे लेके आओ, इतने लाख रुपए। तो बच्चा क्या करेगा? सुसाइड करेगा, माँ-बाप को बताएगा, माँ-बाप मारेंगे। तो अपने बच्चों से फ्रेंडली रहिए, बच्चों से हमेशा बात करते रहिए कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो ऐसे में बच्चा क्या करता है? क्राइम करता है और किसी साइबर बुली का शिकार हो जाता है। तो ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं जहाँ पे मैं उनको ये समझाती हूँ कि आपने क्या रेमेडी करनी है, आपको डरना नहीं है। सबसे पहला काम, आप फेसबुक पे स्टेटस डाल दो कि मेरा अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो गया है, मेरा अकाउंट हैक हो गया है, और आप उसको बोलो मुझे डर नहीं लगता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है कर लो। ये ऐसे लोग आपको डराते हैं। आदमियों के साथ भी ऐसे-ऐसे केसेस हो जाते हैं। अभी रिसेंटली ही व्हाट्सएप पे मैं बताती हूँ आजकल क्या ट्रेंड है। व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आएगा, मान लीजिए आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं एक्वेंटेंस हूँ, आपने मेरा कोई ऐड देखा फेसबुक पे किसी काम के लिए, तो मैंने आपका ऐड देख के आपको व्हाट्सएप पे इनिशिएट किया, क्योंकि व्हाट्सएप पे ही एड्स आती हैं, फेसबुक पे एड्स आती हैं, मार्केटिंग लोग वहीं से करते हैं, तो आपने मुझे मैसेज भेजा कि मुझे आपका ये सामान खरीदना है। अभी मेरे किसी नोन के साथ हुआ कि उसने अपने फर्नीचर की डाली, फर्नीचर ऑन सेल, किसी का उसके पास नंबर आया हस्बैंड के पास कि मुझे आपका फर्नीचर खरीदना है, 1 दिन बात हुई, 2 दिन, तो आपको हफ्ते भर वो बात करेंगे, आपको लगेगा कि ये इंटरेस्टेड है या आपने मकान बेचना है, तो आपकी कन्वर्सेशन ऐसी होंगी कि समबडी इज़ इंटरेस्टेड टू बाय योर फ्लैट और घर। 8वें दिन अचानक से वीडियो कॉल आ जाता है व्हाट्सएप पे। अब क्या है, वो आप थोड़े टाइम पे आप उससे सहमत हो जाते हैं कि ये मेरे काम का बंदा है या बंदी है, आप नंबर सेव कर लेते हो। 8वें दिन एकदम से वीडियो कॉल आता है, तो आपको लगता है अरे ये तो नोन नोन नंबर से आ रहा है, आप सबकॉन्शियसली वीडियो कॉल उठा लेते हो। उस बंदे ने सिर्फ वीडियो कॉल उठाया, जस्ट उसने सिर्फ वीडियो कॉल को ऐसे उठाया कि क्यों वीडियो कॉल कर रहे हो टू से दिस, क्योंकि वो उससे कन्वर्सेशन में बात कर रहे थे, कंफर्टेबल हो गए। जैसे ही वीडियो कॉल खुलाया तो आपका, ये मेरा फ़ोन है, इसको दिखा, ये मेरा फ़ोन है और आपने ऐसे वीडियो कॉल उठाई, ठीक है? तो आपका मुँह और ये वीडियो कॉल, आप समझ सकते हैं वहाँ पे न्यूड लड़की की पिक्चर और आपका मुँह, तो क्या हुआ होगा? उसके बाद उन्होंने उसको पिक्चर को क्लब किया और उसको बोला, एकदम से वीडियो सेकंड में वीडियो आया कि आपका हमने वीडियो बना लिया है, मैं इसको वायरल कर रही हूँ, मुझे 80,000 रुपए दो। सो वो मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप फेसबुक पे वही मैसेज डालो, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बोलो जाओ वायरल कर ले। तो क्या होता है, कितने ऐसे लोग हैं जो एम्पावर्ड होते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज होती है, हम लोग सबकॉन्शियस में गलतियाँ करते हैं। फिर आपको डर लगता है कि आपके, सबसे बड़ी बात होती है अगर ये आदमी के साथ हो, तो कोई इस पे ट्रस्ट नहीं करता। हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं इसने तो ऐसा कुछ किया होगा। हमारा अगर लड़का है, अगर कोई कंप्लेन आएगी कि भई लड़की के साथ कुछ ऐसा पिक्चर है, आप बोलोगे इसने तो किया होगा, ये तो बदतमीज़ है, लड़के तो ऐसे होते हैं आदमी। ऐसा नहीं है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो मैं जो बताना चाह रही थी कि ऑनलाइन एंड डिजिटल क्राइम, पोर्नोग्राफी और ये सारे जो ड्यूपिंग हैं, ये फेस को मर्ज करना, ये बहुत कॉमन हो गया। साइबर फ्रॉड, मनी फ्रॉड बहुत हो रहे हैं कि आपको कोई ऐड आएगी, कोई व्हाट्सएप का आपको एक कोड आएगा, आप उसपे क्लिक करोगे। खासकर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, उनकी पेंशन स्कीम्स बहुत अच्छी-अच्छी आती हैं व्हाट्सएप पे, वो बोलेंगे इसको क्लिक करो, इसको कोड को दबाओ। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कितने फिर पैसे निकल गए, बैंक से निकलते गए, आपको तो पता भी नहीं चला। बच्चे आपकी गेम खेलते हैं, मोस्टली गेम फ्री होती हैं, ठीक है? आप भी बिज़ी होते हो, फ़ोन पे हो, अपना आपका वर्क फ्रॉम होम है, स्ट्रेस है, तो आपने बच्चे को कार्ड दे दिया। क्यों? क्योंकि आपका शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है। कई बार हम अपने बड़े बच्चों को भी अपने कार्ड की डिटेल दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड की, अपनी डेबिट कार्ड की, आपको नहीं पता उसने क्या शॉपिंग की। कंपनीज़ ऐसी होती हैं कि आप नॉर्मली आपके पास ओटीपी आना चाहिए, बट ओटीपी नहीं आता। क्या होता है, एक बार ओटीपी आया, वो ऑटो डेबिट में होता रहता है। तो ऐसे करते-करते पता चला आपके बैंक से 11 लाख रुपए निकल गए। क्योंकि आपको तो पता नहीं कि 11 लाख निकल गए, आपके पास ओटीपी नहीं आया। आपको लगा कि ओटीपी नहीं आएगा। लेकिन जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन होती है, कोई ओटीपी नहीं आता, वो ऑटोमैटिकली डेबिट होता रहता है। तो कभी भी ऐसे ना गलती करें कि आपने बच्चों को कार्ड दे दिया। मोस्टली बच्चे एडिक्टेड होते हैं गेम्स के, ऑनलाइन गेम्स हैं, फिशर गेम्स हैं, फ्री फायर बॉल्स हैं,
बच्चे फाइट गेम खेलते हैं, आपने सुना ही होगा बहुत सारी वेल गेम्स आई थी, बच्चों ने सुसाइड किया। तो गैम्बलिंग गेम होती है, ये फ्री कॉस्ट होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं वो बोलते हैं पे दिस मच ऑफ रुपीज। बच्चा झूठ बोलता है क्योंकि आपको तो पता नहीं, वो कंबल में आपको लगा वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बच्चा गेम खेल रहा है। तो हमें ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि बच्चा हमारा किसी सेक्सटिंग के साथ तो नहीं लगा, कोई सेक्स चैट तो नहीं चल रही। खासकर एक्सटॉर्शन होता है, साइबर बुली, सेक्सुअल एक्सटॉर्शन बच्चे बड़े बूढ़ों सबके साथ होता है। तो आपको ये फैमिलीज को इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया बहुत ही वल्नरेबल हो गया है, तो इंस्टाग्राम पे बहुत स्कैम्स आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि उससे क्या होता है कि आपके इमोशनल रिस्क बढ़ जाते हैं। जब आप ट्रॉमा में होते हो, जब फंस जाते हो, मेंटल लॉस हो जाता है, और फिजिकल फिर आप हो सकता है सुसाइड करो या फिर चुप रहना शुरू करो। आपको नोट करना है, जब आपका बच्चा बिल्कुल चुप रहे, बात ना करे, आपसे चीजें छुपाए, झूठ बोले, तो आपको अपनी गट फीलिंग से, खासकर माँ को इस बारे में पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चा बाथरूम में ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा है, क्यों बाथरूम में बैठा हुआ है, कहीं वो स्मोक तो नहीं कर रहा, कहीं कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा, या फिर कोई वीडियो तो नहीं देख रहा। हम लोग बाथरूम में जाते हैं, फेसबुक देखते हैं, 10 चीजें करते हैं चुप के। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है बाथरूम में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यू हैव टू एक्नॉलेज। तो ये बातों का आप ध्यान, मतलब मैं हस्बैंड के ऊपर नहीं बोल रही कि हस्बैंड अगर फेस बैठा हुआ है तो इसी बच्चों के लिए खासकर बात कर रही हूँ। पता चले औरतों ने, वाइफों ने बोला बाहर निकलो जी, किससे बात कर रहे हो। सो इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट वल्नरेबिलिटी, जो हमारे फैमिली के वल्नरेबल लोग होते हैं उनका हमें ध्यान रखना है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम एक्सटॉर्शन है, हरासमेंट है, ब्लैकमेलिंग है, फॉर्जरी है, ऑब्सेंसिटी है, क्राइम है, सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे। तो आपको इंडियन पीनल कोड आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक आईटी की धारा है, एक स्पेशल उसका एक पुलिस का क्राइम स्पेशल सेल बना हुआ है, साइबर सेल, वो बहुत ही अलग है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेपुटेशन का और फैमिली की इमेज का सवाल होता है। अब आप देखिए, ये सारी पिक्चरें जो है ये लॉकडाउन में हुई है कि वर्चुअल सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क फ्रॉम होम लेडीज़ करती हैं, उनके साथ हुआ। बच्चों को जो चिल्ड्रन बुली है, उनको फेसबुक पे बुलाया गया, कुछ गेम्स दी गई, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर्स दी गई। क्योंकि हम लोग आजकल स्विगी, हमारे बच्चे स्विगी ऑर्डर बहुत करते हैं। आपको भी लगता है यार ऑर्डर कर दो, मेरे जान मत खाओ, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को बहुत स्ट्रेस है। मैं लेडीज़ बहुत बिज़ी हो गई हैं क्योंकि हस्बैंड घर से काम कर रहे हैं। प्लीज़ जिसकी ऑडियो प्लीज़ ऑडियो को आप म्यूट कर दीजिए सबकी। जो लेडीज़ बहुत बिज़ी हो गई हैं क्योंकि बच्चे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, माता-पिता भी घर में हैं, ले सब लोग घर में आप एक बंद हो गए हैं, सबका स्पेस खत्म हो गया, स्ट्रेस बढ़ गया, बच्चों की स्टडी चल रही है। सबसे ज़्यादा लेडीज़ को स्ट्रेस है। उधर से खाने वाले का ऑर्डर घर पे आ रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट कि पीछे से प्लीज़ आप म्यूट कर दीजिए सबको, जिसके पास भी राइट है। थैंक यू। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम फ्रस्ट्रेटेड ना हो, हर को हर का स्पेस मिले। तो कैन वी म्यूट प्लीज़ ऑडियोज़? आप सबको म्यूट कर दीजिए। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ये सारा वर्चुअल हरासमेंट हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर हम आंकड़े देखें तो फिजिकल अब्यूज भी हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस भी हुई, सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ। ये सारे हमारे जो पहले नहीं थे 79%, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ, आपस में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, मारा-पीटी हुई, क्योंकि उस समय सब कुछ बंद था। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक इंस्टाग्राम का दिखाती हूँ कि कोई फेक, मेरा आप मान लीजिए मैं रुचिका को जानती हूँ या मैं सुभाष भाई को जानती हूँ, तो मैं आपकी आईडी को चुरा के आपसे चैट कर रही हूँ और आपसे पैसे, मेरे साथ खुद हुआ। मैं इतनी जानकारी के बाद मेरे एक दोस्त की फेसबुक आईडी, मेरे बॉस होते थे, उनकी फेसबुक आईडी किसी ने हैक कर ली और उन्होंने मुझे मैसेज डालना शुरू किया, "वीना कैन यू हेल्प मी?" कोई बहुत जानकार मेरे हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन का टाइम था। मैं मतलब उस समय इतना सबकॉन्शियसली कि अरे मेरे बॉस ने पहली बार हेल्प माँगी है, 10,000 रुपए, मैंने कहा अच्छा मैं दे देती हूँ, एंड आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। मैंने 10,000 रुपए दे दिए। देन ही सेड, "थैंक यू वेरी मच, कैन यू पे 10,000 मोर?" उसके बाद मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मेरे बॉस ने ऐसे तो नहीं माँगा और उन्होंने इतनी जल्दी बोला, "जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।" देन आई कॉल्ड हिम एंड ही सेड, "वीना मैंने तो फेसबुक पे अपना वो डाला था वॉल पे, तुमने देखा नहीं, मैंने सबको मैसेज डाला है कि मेरा फेसबुक हैक हो चुका है।" देन आई सेड, "ओह शिट!" थैंक गॉड मैंने 10,000 रुपए और नहीं दिए। उसके बाद पैसे गए तो गए, मेरे पेटीएम से पैसे गए। उसके बाद मेरा जैसा बंदा, मतलब इंसान घबरा गया कि मैं क्या करूँ, क्योंकि सब कुछ आपका बैंक लिंक है पेटीएम से। मतलब मुझे सारे अपने अकाउंट बंद करने पड़े, सबको फ़ोन करना पड़ा, पासवर्ड बदलने पड़े, कितना कुछ करना पड़ा। मैंने अपना वो मोबाइल ही बंद कर दिया, मोबाइल टोटल क्लोज़ कर दिया, सिम फेंक दिया, तो उसको स्विच ऑफ कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं जब वर्कशॉप देती हूँ लिंक्डइन पे, तो इंटरनेशनल लोग बहुत सारे आते हैं एंड ऐसी ही कॉल आती है, वीडियो कॉल यूएस से। तो मुझे लगता है कि मेरे नोन होंगे।
बट जब आपके पास वीडियो कॉल आती है तो आपने क्या करना है, आपने उसको ऐसे नहीं लेना, आपने उसको ऐसे बिल्कुल नहीं लेना, आप उसको छत की, जैसे वीडियो कॉल आई आप उसको ऑन करके छत की तरफ लीजिए, उसके बाद ध्यान से देखिए कि कौन है। ऐसे लेंगे, सामने लेंगे बिल्कुल फेस के, तो आपको फेस के सामने लेंगे तो आपका फेस, और वहां से कोई न्यूड पिक्चर आपको ब्लैकमेल कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम इस चीज की ऑनरशिप नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप ये ओपन है पब्लिक के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। रोमांस, फ्रॉडर, लॉटरी बहुत होती है, आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा। जॉब के फ्रॉड बहुत आते हैं, लोन के फ्रॉड बहुत आते हैं कि एक 0% में लोन मिल रहा है। फॉल इन्वेस्टिगेशन, स्कैम, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर इंस्टाग्राम पे हमारा यंगस्टर्स क्राउड बहुत है। अब हम बात करते हैं हार्म ट्रायंगल की। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ये आपका ट्रायंगल है, ये हार्म है, ये एक आपका नॉन ट्रैक अटैकर है, अननोन ट्रैकर है, ये आप है। तो कौन सी तीसरी चीज है जो मिसिंग इसको कंप्लीट करती है? ये क्या है? मौका। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि मौका, मैं घर में बैठी हूँ, देखिए मेरा घर बंद है, सारी तरफ से बंद है। आई जस्ट शोकेस यू, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा, जैसे मान लीजिए घर है। मौके की अगर हम बात करें, ये मेरा दरवाजा है। अब यहाँ से मान लीजिए घंटी बजती है, मैं उठ के जाती हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं मल्टीटास्कर हूँ। मैं यहाँ से उठ के गई और मैंने अपना ये दरवाजा खोला, हाँ राइट, और कोई मेरा जानकर आया सब्जी देने, क्योंकि मैं बिजी थी, मैं उसको जानती हूँ, मैंने कुंडी खोली और ऐसे कुंडी खोल के मैं ऐसे करते हुए आगे वापस यहाँ पे, क्योंकि वो मेरा जान पहचान का है। अब मैं देखिए मेरे पीठ है, मेरा दरवाजा खुल गया, मैं सेफ बैठी हुई थी, लेकिन मैं कॉल पे हूँ, पीछे से कोई आया, मैंने कुंडी खोली, मेरा जान पहचान का धोबी था, मैंने कहा हाँ कपड़े रख दो। मेरा वो था कार वॉशर वाला, मेरी मेड थी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, 2 दिन पहले मेरे घर में कैश था, 2 दिन पहले ज्वेलरी थी, उसको पता था। मैं दरवाजा खोल के अंदर वापस यहाँ पे आ गई, आपके साथ लगी, वो पीछे से आया, उसने मेरी गर्दन पे चाकू रखा, तो मैं घर में होके भी, दरवाजा बंद होके भी ट्रैप हो गई। देन इज टू क्लोज, क्योंकि मेरे गर्दन पे चाकू है, ये चाकू है मेरी गर्दन पे, अब मैं क्या करूंगी? तो ये चीजें हमें, तो हम बात कर रहे हैं इस प्रोस्पेक्ट की, कि हमें इस प्रोस्पेक्ट को नहीं लाना। तो मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगी कि हमें क्या करना चाहिए जब भी हम कुंडी खोलें। फोन पे है, पहले हम कुंडी खोलें तो नॉर्मली अपने घर में एक जाली का दरवाजा होता है, आप देखिए कि कौन है। मान लीजिए मैंने देखा मेरी पुरानी मेट थी और मैं जानती थी, लेकिन या कोई धोबी था कि मैडम आपके कपड़े, तो आपने कुंडी खोल के कपड़े लिए, पहले कुंडी बंद की, जैसे उसने बोला मैडम पैसे दे दीजिए, डिलीवरी वाला आया, आप फोन पे हैं, अगर आपकी पेड डिलीवरी, आप उसको बोला बाहर ही रख दो मैं उठा लूंगी। या आप अपने घर में एक विंडो बना के रखें, कोरियर वाले को आपने वहां से ले लिया, मान लीजिए आपका धोबी है पैसे ले रहा है, तो बोलो कि रुको मैं लाती हूँ, कपड़े लिए आपने, तो एक हाथ से आपने कुंडी को खोला, तो आपने जब दरवाजे पे कुंडी खोला तो आपका हाथ उस पर कंट्रोल है कुंडी पे, मीन्स ये मेरा कुंडी है और मैं उससे कपड़े ले रही हूँ, ताकि अगर वो दरवाजा खोले तो आप उसको वापस बंद कर ले, तो मेरा कंट्रोल है। तो मैंने उसको दरवाजे पे खोला, कपड़े लिए, फिर कुंडी लगाई, फिर मैं वापिस आई, फिर मैंने पैसे ला के खोला। कभी भी ना ये ना करें कि कुंडी दरवाजा खोल के अच्छा यहाँ रख दो। हम क्यों करते हैं? क्योंकि मैं फोन पे बिजी हूँ, मेरा ध्यान फोन पे है। बहुत सारी लेडीज घर में होती हैं, फोन पे लगी रहती हैं, जो भी मतलब नॉर्मली अपना फोन सेशन चल रहा है, दोस्त से बात कर रहे हैं, घर से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं फोन ना छोड़ूं दरवाजा खोल के, क्योंकि मेरे सामने नॉन व्यक्ति है, लेकिन मैं भूल गई कि उस नॉन व्यक्ति को मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो हम घर में बैठ के भी इस प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं और इस हार्म ट्रायंगल में आ जाते हैं। ये आप सफरर हो गए, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, मतलब मौका, आपने किसी को मौका दिया, कुंडी खोली, वो आपके घर में आया, आपके घर में सोना था, पैसा था, और उसको लूटने के लिए वो आया। तो इस केस में अगर उसने आपके ऊपर गर्दन में चाकू भी लगाया है, आपको बोल रहा है कि चलो चलो चलो, तो आपने उसको पहले थोड़ा रिलैक्स करना है। ओके फाइन, व्हाट्सअप, व्हाट यू वांट। कोशिश करें आप किचन, वो आपसे बोलेगा पैसे दो, तो आप बोल सकते हैं कि पैसा मेरा बेडरूम में है, चाबी वहां है, तो आप हाथों को ऊपर करके ओके 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 करते। हर घर में एक ड्राइंग रूम होता है, किचन होती है, किचन के साथ बेडरूम के दरवाजे होते हैं, तो आप बेडरूम बोलो चाबी वहां, ऐसे करते करते आप आगे जाओ, उसके माइंड को डाइवर्ट करो, आप उसको बेडरूम में ना ले जाके सीधा किचन में चले जाओ। ठीक है, किचन में सबसे पहले आप जाओगे, तो किचन में अगर चले गए तो आप सेफ हो। द सेफ हेवन इज द किचन। किचन में आपका मिर्च मसाले, किचन में आप ऐसे गए, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, आप चाबी दे रहे हो, ओके मैं दे रही हूँ, ओके मैं दे रही हूँ, देखिए जैसे ही बेडरूम की तरफ आए, बेडरूम में न जाके किचन बीच में होती है, सीधा उसको धक्का दिया और किचन में चले गए। वहां पे आपने जाके बेलन फेंका, पानी फेंका, मिर्ची फेंकी, कुछ भी आप कर सकते हो। अब हम बात, ये तो होगी घर की। अब हमारे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी मिटिगेशन,
जब हम ट्रैवलिंग करते हैं किस तरह का रिस्क होता है, हम कैसे चलते हैं, थोड़ा मीडियम होता है अगर हम ध्यान से चले। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सड़क के, हम नॉर्मली कहाँ चलते हैं, लेफ्ट पे चलते हैं, हमारी आदत है हम लेफ्ट पे चल रहे हैं, तो हमारी ये लेफ्ट पे हम सड़क पे चल रहे हैं। और ओके, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी, आप देख लीजिए हमारा ट्रैवलिंग अलोन, ट्रैवलिंग इन कैब मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो यहाँ से शायद दिखेगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मान लीजिए हम ये ट्रैवलिंग हम लेफ्ट पे चल रहे हैं, तो मेरा जो ये लेफ्ट है, ओके, सो हम जब लेफ्ट पे चलते हैं हम ऐसे चलते हैं और फोन पे बात करते हैं और पीछे से हमारी गाड़ियां आ रही होती हैं। ओके, सो ये मेरा लेफ्ट है, मेरे पीछे से गाड़ी आई है, अगर मेरे हाथ में फोन है और यहाँ पे बैग है, तो पीछे से बाइकर आया और आपका खींच के ले गया, ठीक है, क्योंकि आप सड़क पे थे, फोन पे बात करते जाते हो। ये मेरी सड़क है, मैं ऐसे जा रही हूँ, ये मैं ऐसे जा रही हूँ और यहाँ से पीछे, मेरे पीछे से बाइकर आ रहा है, क्योंकि बाइकर्स भी लेफ्ट पे जा रहे हैं, गाड़ी भी लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो मेरे हाथ में फोन है, बैग है, किडनैपिंग भी पीछे से ही होती है, तो पीछे से किसी ने पकड़ा और मुझे खींच के ले गए। तो आपको लेफ्ट पे ना जाके विपरीत साइड पे जाना है। मान लीजिए आप, फिर आप सड़क को क्रॉस करेंगे, इधर जाएंगे सीधे हाथ पे, अब सामने से मुझे गाड़ी दिखनी चाहिए आते हुए, यानी कि मैं जब आगे जा रही हूँ मुझे गाड़ी सामने से दिखे, तो मैं आगे गई और गाड़ी मेरे सामने से आई, तो मेरे हाथ में अगर बाइकर आया तो मैं उसको रोक सकती हूँ, स्टॉप कर सकती हूँ। मीन्स आपको फेसिंग द ट्रैफिक चलना है, जहां से आपको ट्रैफिक दिखता है आप वॉक करेंगे ट्रैफिक की तरफ। आप ऐसे मत वॉक कीजिए कि पीछे से ट्रैफिक आए, जब भी पीछे से कुछ आएगा, हमला होगा, हमेशा फेस करेंगे। कोई आपके सामने भी आया है तो आप डर के भागे ना, उसको ऐसे फेस करें, सामने से फाइट करो। तो आपकी गाड़ी, जब भी आप सड़क पे चले, ध्यान रखिएगा लेफ्ट और राइट, हमारे बच्चे और सब लोग लेफ्ट पे चलते हैं, हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, मेरा बैग यहाँ पे है और मेरे पीछे से गाड़ी आ रही है, तो मैं यहाँ पे हूँ, पीछे से गाड़ी आई, तो इजिली कोई भी बाइकर चेन खींच के ले जा सकता है, बाइक खींच के ले जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उल्टे ट्रैफिक पे जाएं, फेसिंग ट्रैफिक। ओके, अब हमारा हो गया किस तरह के क्राइम्स होते हैं, ये सारे क्राइम देख लीजिए। हमारी कुछ धाराएं बनी हुई हैं पीनल कोड की, मोलेस्टेशन, ई टीजिंग, स्टॉकिंग, मर्डर, रेप, फिजिकल अटैक, ठीक है, आपका सुसाइडल हो गया, अबैटमेंट होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, चोरियां होती है, क्रिमिनल इंटीमेसी होती है। और आपके जो आईटी एक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, आईटी एक्ट में आपके साइबर है, डेटा थ्रेट है, ये सारी चीजें आपकी साइबर में आती हैं। आपके प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काफी सारे बने हैं। फिर आपका आ गया क्या करना है, आपको जब भी कोई रिस्क हो, खासकर जब मेंटल रिस्क होता है, आप किसी को इन्फॉर्म करें, अपने एक रूटीन बनाएं, अपना डेली रूटीन को थोड़ा पॉसिबल रखें, पर्सनल हाइजीन रखें, ईट हेल्दी खाएं, अच्छा सोएं, अपने टाइम और वर्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा ब्रेक दें और अपनी चीजों को एंजॉय करें। हमें क्या करना है, हमें बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो थोड़ा सा कम करना है, उनको आपको ये बताना है कि आप कितना टाइम इस पे आप फेसबुक पे रह सकते हैं, और नेटफ्लिक्स कितना टाइम देखना है, आजकल हम एडिक्टेड हैं, सारा टाइम नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो आपको एक वीडियो गेमिंग का, नेटफ्लिक्स का, कोई भी चीज का आपने बच्चों को टाइम देना है कि आप इतने टाइम नेटफ्लिक्स देखेंगे। ये नहीं है कि बच्चे हमारे जो यंगस्टर्स है पूरी पूरी रात टीनेज नेटफ्लिक्स देखते हैं, इवन बड़े भी, ठीक है, हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि इन सारी चीजों का हम ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, लेडीज जब बाहर जाती हैं तो आपको ये देखना है कि फेसबुक पे क्या पोस्ट करना है आपको। कई कई बार लेडीज क्या करती है, बच्चों की बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहन के, जन्माष्टमी में छोटे कपड़े, माय बेबी इज लुकिंग सो नाइस, न्यू बॉर्न बेबी की डाल दिया, अभी भाई पैदा हुआ है, अभी हम वहाँ पे गए हैं मिलने के लिए, अभी हम जन्मदिन बना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे माय सन। हम अपने बच्चों को साइबर पे एक्सपोज करते हैं जो कि जरूरत नहीं है, और वहां पे साइबर ट्रैफिकिंग वहीं से होती है, वहीं से अटैकर चूज करता है कि इसको उठाना है, इसको नहीं उठाना, इसके पास ज्यादा पैसा है, फिरौती वहीं से आती है। तो आपको ध्यान रखना है। लेडीज लेडीज शादी में जाती हैं, ओ माय गॉड माय न्यू ज्वेलरी हस्बैंड गिफ्टेड मी, मेरी एनिवर्सरी में मेरे हस्बैंड ने हीरो का हार दिया, मेरे ये किया। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, आपने क्या डालना है, आपको चेकलिस्ट करनी है। जब आप बाहर जाएंगे आपको क्या क्या करना है, कि आपकी कार में क्या होना चाहिए, चाइल्ड, जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपके गाड़ी में बैठते ही आपको चाइल्ड लॉक लगाना, सेंटर लॉकिंग लगानी है। कई बार लेडीज क्या करती है, इवन हस्बैंड भी गाड़ी में बैठेंगे, शीशा ठीक करेंगे, बैग को पीछे रखेंगे, फोन सेट करेंगे, बेल्ट लगाएंगे, लेकिन आपकी गाड़ी सेंटर लॉकिंग कभी नहीं होती। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि गाड़ी में आपने क्या रखना है। कभी भी गाड़ी को दूर दूर डिस्टेंस से ना खोलें। कई बार क्या होता है, हम गाड़ी की चाबी लेते हैं,
गाड़ी मेरी दूर 20 मीटर खड़ी है, 50 मीटर, मैंने दूर से उसको लॉक करके खोल दिया। एंड यू नेवर नो, रात का टाइम है, कोई गाड़ी के नीचे बैठा हो। आपको ये ध्यान रखना है कि सिचुएशंस में क्या आप कर सकते हैं। वॉकिंग इन एलिवेटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब लिफ्ट में जाते हैं, तो अगर मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं, खासकर लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए, जब आप कॉलोनी में खेलते हैं, किसी लिफ्ट में हैं, तो आप जब अकेले जा रहे हैं लिफ्ट में और रात का टाइम है, तो आप किसी भी अननोन जगह पे बच्चों को यही बताएं कि लिफ्ट में जब जाते हैं तो आप पैनल के साथ खड़े हों। अगर आपको 11वीं फ्लोर पे जाना है, तो आपको अगर 11वीं फ्लोर पे जाना है, तो आप सारी फ्लोर्स के बटन्स बंद कर ऑन कर दीजिए, ताकि हर फ्लोर पे बाय डिफॉल्ट लिफ्ट रुकेगी। मान लीजिए आपको 11वीं फ्लोर पे जाना है, रात का अंधेरा है, आपके साथ कोई 2 लोग और आके चढ़ गए, गाड़ी में उसमें बैठ गए, सॉरी लिफ्ट में आ गए, तो आपको एक डर लगता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चों के साथ गार्ड भी ऊपर चले गए और गार्ड बच्चे को बोल रहा है कि जरा अपना स्कर्ट उठा के दिखाओ कैसे लगते हो, छोटा बच्चा, उसको नहीं पता वो क्या करेगा, क्योंकि 10वीं फ्लोर पे जाना है, गार्ड के हाथ में कंट्रोल है लिफ्ट के बटन का। तो आप जैसे ही अपने बच्चों को बताएं कि लिफ्ट में आप जाएं, तो पैनल के साथ खड़े हों, आप भी पैनल के साथ खड़े हों। कई बार मेरे साथ होता है, कभी मैं मीटिंग में जाती हूँ, कि मैं एक बार ऐसा हुआ, मैं कहीं मीटिंग में गई, उन्होंने शाम को बुलाया और उन्होंने बोला टॉप फ्लोर पे चलते हैं। तो मैं अकेली जा रही थी, जैसे मैं लिफ्ट में आई, एक जेंटलमैन और आ गए, जिन्होंने मुझे वो दिखाना था साइट किसी जगह का। तो मुझे तो बड़ा घबराहट सी हुई, आई थिंक मुझे खुद ही गट फीलिंग आ गई समथिंग रॉन्ग, तो मैंने इमीडिएटली ऊपर ना जाके ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया, नीचे का। तो लिफ्ट ऊपर गई नहीं और मैं बाहर आ गई, मैंने कहा मैं सीढ़ियों से आती हूँ। तो उसी तरह आपको पता चल जाता है, तो आप कंट्रोल रखें पैनल का अपने पास, रेज़ अलार्म कर दें, मोबाइल अपने साथ रखें। क्रेडिट कार्ड हमेशा ध्यान रखें कि आप किसको हाथ में दे रहे हैं, किसको पासवर्ड दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पेट्रोल पंप पे खासकर आपको कार्ड का बिल्कुल ध्यान रखना है। एटीएम पे आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पॉकेटिंग, कोई भी आपका मैसेज जो है वो देख रहा है, आपको ध्यान रखना है। जब आप ट्रांसपोर्ट में जाते हैं अकेले, सोशल गैदरिंग में जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, जब आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं, अपनी ड्रिंक्स खुद बनाएँ, अपनी ड्रिंक्स को ऐसा ना छोड़ें कि कोई उसमें कुछ डाल दे। पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि क्या लीगल लॉ है, क्या प्रोसीजर है। जब आप ट्रांसपोर्ट में रहते हैं, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहें, वल्नरेबल चीज़ें ना पहने कि खूब सारा गहना पहन के अकेले कैब में किसी से मिलने जा रहे हैं, चेन आपकी मोटी सी दिख रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखें। एट वर्क ऑफ कोर्स हम लोग ध्यान रखेंगे, अभी तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं, लेट्स बिगिन, मतलब हम सेल्फ डिफेंस की बात करेंगे। और आप लोग रेडी हो जाइए, हमारे पास आधे घंटे का टाइम है। मैं आपको कुछ पोस्टर्स बताऊँगी, कोई पोजीशन ऑफ लेग एंड हैंड्स बताऊँगी, बॉडी डिफेंस बताऊँगी, थोड़े बहुत अटैक्स बताऊँगी। ये बेसिक टिप्स हैं कि अनआर्म्ड होके भी आप कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, कौन से वाइटल ऑर्गन्स पे आप हाथ मारें जहाँ पे चोट लगे, कहाँ पे आपने पकड़ना है। ऐसी चीज़ें हैं, किन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आप कुछ भी नहीं है, आपके पास एक सिंपल सा रबड़ बैंड भी है, आप उसको निकाल के उससे लड़ सकते हैं, अपनी अंगूठी से लड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक्शन करना है, पीछे हटो, बेसिकली यू हैव टू जस्ट एक्ट लाइक दिस कि आप अंगूठी से लड़ रहे हैं। आपके हाथ में कुछ भी हो, आपके हाथ में घड़ी हो, मोबाइल फ़ोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, लैपटॉप हो, की हो, घर की चाबी हो, स्प्रे हो, पानी की बोतल हो, हैंड बैग हो, कुछ भी हो, आप उससे लड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके पास में कुछ टूल होना चाहिए। ध्यान रखें, जब आप कोई कैब हायर करते हैं, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको शेयर करें। पार्किंग जहाँ पे आपने की है उसका ध्यान रखें। आपको जब एटीएम में जाते हैं, तो ऐसी जगह से पैसे ना निकालें जो कि एकदम से अंधेरा वाला हो, वहाँ पे लाइट ना हो। कोशिश करें लाइट लाइट लिटेड एरिया से आप पैसे निकालें। वहाँ पे आपका कैमरा होना चाहिए, गार्ड अलर्ट होना चाहिए। तो आप ऐसी जगहों से पैसे निकालें। कभी भी पैसे निकाल के एकदम से कैब में ना आए पैसे गिनते हुए, या कैब में आप बैठे हैं तो ये बातें ना करें, "अरे! आज तो 20,000 निकाले, एटीएम चल नहीं रहा।" क्योंकि वो आपकी कन्वर्सेशन सुन रहा है। यू नेवर नो, आगे वाले स्टॉप पे, खासकर जब रात का टाइम होता है, तो आप ध्यान रखें कि ऐसी जगह से पैसे निकाल के एकदम से कैब पे ना बैठें और अपने आप को वल्नरेबल ना बनाएँ। पुलिस हेल्पलाइन वुमेन के लिए 1091 है, एक नेशनल हेल्पलाइन नई लागू हुई है 112, पहले 100 नंबर था, अब 112 है। वुमेन सेफ्टी हेल्पलाइन 1091 है, कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी भी सिटी में, यू हैव टू डायल ओनली 1091। साइबर बुली से कैसे बचा जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी कोई अननोन लोग की फ्रेंड रिक्वेस्ट ना लें, ठीक है? और नियम के अनुसार आपको सोशल मीडिया पे किसी अननोन से दोस्ती ना करें, जो आपको ऑफलाइन नहीं जानता उससे आप एकदम से दोस्ती ना करें, उसकी इन्फॉर्मेशन लें, अपने फ़ोन नंबर एकदम से ना शेयर करें, प्राइवेसी में ध्यान रखें कि कोई आपको टैग ना कर सके, कोई आपको कॉल ना कर सके। तो इस तरह की छोटी-छोटी जो सोशल मीडिया, फेसबुक की चीज़ों को आप ध्यान ध्यान रखें।
और कोई भी चीज को इंस्टॉल ना करें। अगर कोई फेसबुक पे डेटिंग ऐप आता है, ऑनलाइन गेम आती है, कभी भी अननोन रिसोर्स उसको डाउनलोड ना करें। बच्चों को बताएं कि ये लिंक फ्रॉड हो सकता है। खासकर अपने मोबाइल पे बच्चों को ना बोलें कि कोई भी आप लिंक को डाउनलोड करो। कोई मैसेज बोलता है आपको हार्मफुल मैसेज और उस साइड करने के लिए कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर जो बच्चे वल्नरेबल होते हैं, जिनको अटेंशन नहीं मिलती, वो अपने अननोन फ्रेंड से दोस्ती कर लेते हैं, एक वर्चुअल दोस्त बना लेते हैं, वर्चुअल साथी बना लेते हैं, जो आपका इमोशनल में साथी होता है। तो कभी भी अपने आप को वल्नरेबल साबित ना रखें। बच्चों से बातें करें, उनसे उनकी मदद करें और उनको पूरा समझाएं कि गलत क्या है, सही क्या है। जब भी बच्चा आपके पास आता है, जब वो बड़ा होता है, तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में बताए, उसको अच्छी चीजों के बारे में बताए, उसको सेफ्टी के बारे में बताए, खासकर लड़कों को। नॉर्मली हम लोग शर्म करते हैं कि अरे बच्चे से ऐसी बातें क्या करनी है, लड़कों का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं। 13-14 साल में जैसे लड़कियों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, बच्चों के हार्मोन्स भी चेंज होते हैं। तो हमें बच्चों लड़कों के हार्मोन्स के बारे में भी उनको बताना पड़ेगा कि आपके शरीर में क्यों परिवर्तन आ रहा है। हम लड़कियों को तो बताते हैं कि जब उनके हार्मोन्स बदलते हैं वो तो हम सारी माताएं सब लोग बताते हैं उस बारे में, लेकिन लड़कों को कोई नहीं बताता। तो लड़कों को खासकर हमें बताना पड़ेगा कि आपके बाल क्यों आ रहा है, आपके मूंछा क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। साइबर बुली पे अगर आपको कोई परेशान करता है तो अपने माता पिता को बताएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं। कोई ब्लैकमेल करता है उस बारे में बात करें, अपने दोस्तों से शेयर। ये कई बार बच्चे बताते नहीं, अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं। इवन हस्बैंड, बड़े लोग भी अपने दोस्तों के साथ सलाह लेते हैं, लेकिन घर में नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना साहस नहीं दिया है। तो अपने बच्चों से हमेशा खुल के बात करें, ताकि वो आपको बताए कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। आप कोई भी उसके बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। कभी भी घबराएं ना, पुलिस को इस बारे में। पहले से कोई आपको स्टॉकिंग करता है, आपको फिर आपको फॉलो कर रहा है, आपके पीछे पीछे आ रहा है, आपको फोन कॉल कर रहा है, तो आप उसकी जानकारी दें, जिसको बोलते हैं येलिंग, टेलिंग, येलिंग, रनिंग एंड शेयरिंग। टेलिंग, येलिंग मतलब कोई अगर आपको अचानक बोलता है "आप चिल्लाओ, क्या है", आपको चिल्लाना है ताकि अटेंशन मिले अगर आप बाहर अकेले हो। टेलिंग मतलब उसके बाद आपने उसको पुश करना है, धक्का देना है और भागना है। रन इज द भागना। और फिर आपने टेल मतलब किसी टीचर्स को बताना है जिसको आप ज्यादा समझते हैं, अपने पेरेंट्स को बताना है, पुलिस को भी बताना है। कई बार क्या होता है, हम अपने घर वालों को नहीं बता पाते। दैट इज अ रीजन ऑलवेज वी हैव अ 3 AM बडी। मतलब हम अपनी बात, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, वो अपनी वाइफ को शायद नहीं बता पाए क्योंकि वो उनको नहीं समझेगी, तो वो एक वर्चुअल दोस्त बनाते हैं। उसी तरह वाइफ भी बना लेती हैं, बच्चे भी बनाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे का दोस्त बने, साथी बने, उसको साहस दें कि वो अपनी बातें हमें बताए। ये एक मेरा ऐप है MSMR। इसकी मैं खूबी बताती हूँ। मान लीजिए अगर आपने इसको डाउनलोड किया है, तो आप इसको जब आप इसको बजाएँगे, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा-सा इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, सायरन है। ये सारे फीचर्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, आपको कोई डर लग रहा है, तो आप इस वाले ऐप को इसको सिर्फ ये बता दीजिए, तो और उसके बाद ये दबा के अपने बैग में रख लीजिए। किसी को लगेगा कि आस-पास पुलिस आ गई है, तो आपको एक डेटरेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक आपको भय क्रिएट करना पड़ेगा लोगों के बीच में। बिना किए हुए भी लोग भाग जाएँगे। जैसे पहले टाइम पे होता था कि हम बोलते थे, जैसे हमारे घर में हम बचपन में कभी एक एक बार चोरी हुई थी, तो हमारे पिताजी ने उनको डराने के लिए बोला, "अरे! मेरी बंदूक लेके आओ, जल्दी लाओ मेरी बंदूक, वो वहाँ पड़ी है", तो उन्होंने सुना बंदूक, वो भाग गए। तो उसी तरह से हमें लोगों को डर बिठाना है, तभी लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस के सायरन से डरते हैं। तो इस ऐप में बहुत ही अच्छी बात है कि एक ऐप सायरन है। आप सिर्फ सायरन बजा दीजिए, बाकी इसमें जो मैंने सिखाया है सारी वुमेन सेफ्टी टिप्स हैं, तो इस नाम से आपको मिलेगा। इस तरह की शक्ल आएगी, मेरा एक फ़ोटो आएगी, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सारी सेफ्टी टिप्स और वीडियोज़ वहाँ से शेयर कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टॉप करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, और अब हम 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर 15 मिनट का हम अपना वो ऑलराइट। सो आई थिंक क्विकली सुनीता जी, आप मुझे फ़ोन कर रही थी, तो यहाँ बता सकती हैं। सॉरी मैं आपका फ़ोन नहीं ले पाई। आई डोंट नो इफ शी वाज़ कॉलिंग मी। तो No, no, ma'am, that was just regarding that, we wanted to see you on the screen. वो slide के ही लिए I was calling you up, ma'am. That's फिर it. मैं दिख गई थी? जी, जी. ओके। तो अभी आप जल्दी से क्विकली, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, कि आप ये बताएँ कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको सिनेरियो दिया कि मैंने दरवाज़ा खोला, मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बताती हूँ, तो उस केस में आप क्या करेंगे?
मान लीजिए आपने गलती की, आपका धोबी आया, आप फोन पे थे, आपने कुंडी खोल दी और आप बैक करके वापस आ गए बिना दरवाजे को वापस लॉक किए, और उसने आपकी गर्दन पे नाइफ रख दिया यहाँ पे कि चलो पैसे दो सारे, और उसने पीछे से पकड़ा है, उस केस में आप क्या करेंगे? कैसे मतलब आप इससे काबू आएंगे? और आपके घर में पूरे घर वाले हैं, हस्बैंड भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन आप इस तरह से ट्रैप हो गई, तो क्या करेंगे? इसमें कुछ कर सकते हैं आप लोग? अब मैं चाहूंगी कि सब लोग वीडियो ऑन करके इंटरेक्टिव सेशन करें, बात करें, और फिर हम Yeah, we can remove that knife, whatever that she has, means he or she has put down that in our neck. Means we can make that, we know that कि dangerous है ये ऐसा रखना यहाँ पे, we if we move about like here and there तो कुछ भी हो सकता है, but in Right. that case we can do something like type of पीछे से ऐसे कुछ किया, उसको I धक्का think we दिया, can push. We Yeah. can just anything we can make it. like push. We can push him. या तो आप मीन्स आप मीन्स क्या बताएं, मीन्स आपकी तरफ से जो हो सके. नहीं, उसमें उसमें ऐसे ही होगा। देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए मेरे इसमें ये नाइफ लगा हुआ है, पीछे से किसी ने पकड़ा है, तो आपका पहला काम है ओके ओके व्हाट यू वांट, तो आपने पहले ऐसे हैंड्स अप किया, अच्छा, फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और उसको बातों में रखेंगे, अच्छा आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए, एंड देन एग्जैक्टली जो आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है। आप चलते बेडरूम की तरफ चाबी लेने जाएंगे, प्रिटेंड करेंगे कि मैं आपको चाबी दे देता हूँ या फिर मैं आपको पैसे दे देता हूँ। जैसे ही वो आपको ट्रस्ट करने लगे, उसके बाद आपने झटके से उसको कंट्रोल में लेना है। ऑफ कोर्स हम वो अभी नहीं कर पाएंगे, बट ये बहुत बेसिक सा है। दूसरा, मैंने आपको बोला था कि जब आप जैसे मैंने आपको बोला था कि आप लेफ्ट में चलते हैं, तो आप अपना बैग कहाँ पे डालते हैं? मैं एक मिनट ट्राई करती हूँ कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। लेट मी सी इफ आई कैन सेट अप माय स्क्रीन अप। ऑलराइट, हाँ, बताएं आप जो लेफ्ट में है वो आप कैसे चलते हैं? जैसे मैं आपको बताना चाह रही थी उस समय कि ये मेरा दरवाजा है, ये वाला, ठीक है, और तो ओके, ये आपका लेफ्ट है रोड, मान लीजिए ये आपका लेफ्ट रोड है, तो आप जब इधर लेफ्ट में जा रहे हैं, ये आपका ओके, हाँ ये लेफ्ट है, तो आप लेफ्ट में बैग यहाँ पे लेके जाते हैं नॉर्मली और फोन पे बात करते हैं, सपोज ये जा रहे हैं, तो जो आपका हाथ ट्रैफिक की तरफ एक्सपोज है, मान लीजिए मैं ऐसे जा रही हूँ और पीछे से मेरी गाड़ी आ रही है, तो मेरा इस हाथ में बैग नहीं होना चाहिए, इस हाथ में होना चाहिए, मतलब मेरा ये सीधा हाथ टोटली खाली होना चाहिए। अगर कोई मुझे अटैक करता है या पीछे से पकड़ता है, तो मैं यहाँ से बैग निकाल के उसको थ्रो कर सकती हूँ और कंट्रोल। सो सपोज मुझे एज्यूमिंग किसी ने पीछे से पकड़ा है, ये मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा है, मेरा बैग यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ से बैग निकाला और उसको पूरा थ्रो किया और उसको पूरा 360 घुमा दिया, तो ये एक इजी वे है उसको कंट्रोल करने का। नाउ जब हम क्वेश्चन मैंने जो आपको ट्रायंगल का बोला था, मैंने बोला था मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि कितने वल्नरेबल हैं जब आप सड़क पे अकेले जाते हैं। तो क्या जब आप सड़क पे जाते हैं तो आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि कोई आपको पीछे से फॉलो कर रहा है? दूसरा, नॉर्मली मतलब मैंने आपको बता दिया कि ध्यान रखें आप लेफ्ट में ना जाके राइट पे जाएं, अपोजिट साइड। दूसरा, जैसे मैंने आपको दरवाजे के लिए बताया था, तो ये मेरा जैसे मान लीजिए दरवाजा है, यहाँ पे मैंने कुंडी खोली, कोशिश करती हूँ यहाँ पे, ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ से कुंडी खोली ये, ठीक है, और उन्होंने यहीं से मेरी गर्दन पे रख दिया कि पैसे दो। पीछे से मैं यहाँ पे फोन पे आ गई, यहाँ तक मैं आई, वो मेरे पीछे पीछे आए, उन्होंने मेरी गर्दन पे रखा, उससे भी आपने कहना ओके ओके ठीक है देखिए क्या चाहिए, ठीक है, ऐसे करते करते ओके ठीक है मैं पैसे देती हूँ, ओके फाइन, ऐसे ओके करते करते आप उसको जहाँ पे भी ले जाना है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि अब मुझे झटका, तो मान लीजिए ये आपकी गर्दन है, ये आप जा रहे हैं ओके, और ये पीछे से आपका नाइफ है, तो वो भी रिलैक्स हो जाएगा, उस समय आपने झटका देना है। बट नाइफ की जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो तो कोशिश करें कि सरेंडर कर दे, तब तक आप मतलब काबू में ना करें, क्योंकि जब उसको आप पैसे देंगे वो आपका लीन होगा, हाथ छोड़ेगा, आपको मौका देके फिर झटका देके आपको उसे काबू में आना है। ओके, इसको बंद कर देती हूँ। नाउ कैन वी ओके, मेरा हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे चेन स्नैचर्स रहते हैं, हाँ, लाइक आई वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट हाँ, विद चिल्ड्रन एंड अचानक से दो बॉयज आए एक्टिवा में हाँ, एंड फट उन्होंने यहाँ हाथ मारा एंड चेन स्नैच करने की कोशिश की, पर ये तो मुझे एकदम स्ट्राइक हो गया कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड मैंने एकदम से हाथ पकड़ लिया, दे पुल्ड माय हेयर, दे लिटरली पुल्ड माय हेयर,
and they ran away. Like they नहीं, couldn't तो- get the chain. तो आप बेसिकली वही मैंने बोला कि जब मैं लेफ्ट पे जा रही हूँ, पीछे से मेरी चेन है, तो पीछे से सपोज आप लेफ्ट में खड़े हैं, मैं बाइकर हूँ, राइट? फॉर मी इजी टारगेट इज समबडी ऑन द लेफ्ट साइड हु इज हैविंग ए चेन। तो मैं टारगेट ढूंढ रही हूँ, मैं बाइक पे हूँ, ऐसे हूँ, आप लेफ्ट पे जा रहे हैं, मैंने चेन पकड़ी और भाग गए, ठीक है? और कई बार सामने ऐसा भी हुआ है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो घर की उनका कोठी है, वो नीचे सुबह 6 बजे उठती है अपनी मैक्सी में और घर धोती है। तो जब वो धोती है, उनकी चेन ऐसे नीचे लटकती है, बड़ी सी चेन है, वो घर गए धो रही थी। अब जो लोग हैं, जो बाइकर, जो चेन स्नैचर होते हैं, वो सुबह 6 बजे निकलते हैं और वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो सड़क पे रन कर रहे हो, मोबाइल यहाँ पे लगा रखा हो, तो वो पीछे से बाइक लेके आते हैं और खींच के चले जाते हैं बैक से। इमेजिन वो घर के बाहर है, उसका घर है, घर की गाड़ी निकली, वो धोती है, चेन लटक रही है, किसी को तो पता होगा चेन लटक रही है, एंड शी वाज डूइंग लाइक दिस। वो बाइकर उसके घर के सामने आए, आंटी ये रास्ता बताना कहाँ पे है? शी गॉट एंगेज, अच्छा बेटा इधर चले जाओ, इधर से चले जाओ, एंड देन दे ट्राई टू पुल, बट व्हेन दे, आप उसकी जैसे आपने किया, जैसे उन्होंने पुल किया, उसने फाइट बैक की, तो गलती से जो चेन है उनके अंदर कपड़ों में चलेगी, शी वाज सेव। तो ऐसे ही चीजें हो जाती हैं। तो मैंने आपको बोला कि जब आप वल्नरेबल हो, तो ऐसा थोड़ी था कि उसको किसी ने आपको फॉलो किया होगा, somebody must be doing the stalking on you। लोग 6-6 महीने फॉलो करते हैं और उसके बाद जाके आपको ट्रैप करते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो गलती करें। ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जैसे जेंट्स लोग हैं, फोन पे सड़क पे जा रहे हैं, घर से फोन आया, वो फोन पे बात करके जा रहे हैं, हाँ हाँ बॉस का, ओके फाइन, ये मेरा फोन है, ठीक है, और ये बाइकर है, इजी फोन गया। बहुत सारे केसेस हुए थे लॉकडाउन में, जो लोग रन पे जाते थे। लेडीज बहुत सारी मल्टीटास्किंग होती है, हमें टेंशन होती है कि घर जाने से पहले चाय भी बन जाए, अदरक भी आ जाए, दूध भी आ जाए, सब्जी भी आए, तो हम बच्चों को स्कूल से, हाँ सुन, अच्छा ये कर दियो, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, हम फोन पे बिल्कुल भूल जाते हैं। यंगस्टर्स क्या करते हैं, ड्रेसअप होके गए हैं, सड़क पे बस स्टैंड पे खड़े हैं, भाई मैं सेल्फी, ओ या सेल्फी हो रही है, फिर सेल्फी होके हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करना है, हमें फेसबुक पे चेक इन भी करना है, सो वी डू दिस ऑन रोड। अगर मैं वल्नरेबल हूँ रोड पे, सब कुछ मैं रोड पे कर रही हूँ, तो आई कैन बी इन हार्म। तो हमें ये चीजें ध्यान में रखना है कि हम अपने आप को हार्म पे ना लें। ओके, नाउ आर वी रेडी टू डू समथिंग? ओके, आप अपना म्यूट हटा लीजिए। एनी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है? Yeah, actually, I want to ask you one question. If the twins are caught but accused, but even they are victim, what you can say about this? दे आर एक्यूज बट दे आर विक्टिम। या मैंने बोला एक्यूज कैन बी विक्टिम, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो झूठी कंप्लेन होती है, खासकर जो डोमेस्टिक वायलेंस की 498 की है, 498 की है, पॉश की है, झूठी कंप्लेंट्स होती है। खासकर ये जो डॉरी के केसेस होते हैं, झूठे होते हैं, माँ बाप के ऊपर लगते हैं, चाचा ताऊ पे, मामा मामी, सारे के ऊपर पुलिस वाले आईपीसी लगा देते हैं। तो हमें फैमिली में हमें ध्यान रखना है कि एक्यूज कैन बी विक्टिम। तो हमें नॉर्मली हम सोसाइटी उसको करार कर देते हैं कि ये तो होगा ही ऐसा, तो हमें सोसाइटी को उसको साथ देना है और आपको फाइट बैक करना है। यू हैव टू फेस द ट्रायल। अगर आप इनोसेंट है, आप फेस कीजिए, आप पुलिस के पास जाइए, उनको एविडेंस दीजिए, उनसे बात कीजिए। नॉर्मली हम पुलिस के पास भी नहीं जाते, हम क्या करते हैं, तो लोगों को फोन करते हैं, भाई बताना कोई रेफरेंस है, कोई जानने वाला है पुलिस में। विदाउट गोइंग टू पुलिस स्टेशन वी सरेंडर, वी ट्राई टू ब्राइब देम, वी ट्राई टू गिव देम द मनी। तो पुलिस वाले भी जानते हैं कि मिसयूज होता है लॉ का, वो भी बेचारा सताया हुआ है। घर में आदमियों की भी मार पड़ती है, ऐसा नहीं है बीवी हस्बैंड को नहीं मारते या हाथापाई में लग नहीं जाता, सब होता है। बट क्या होता है, हमेशा आदमी को ही करार किया जाता है, लॉ क्योंकि सपोर्ट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इनोसेंट हैं, हमारे पास इनफ प्रूफ हो, हम जाके उनसे बात करें और हम जाके इसको फेस करें ट्रायल को। तो उसकी यही रेमेडी है, अपने पास प्रूफ होने चाहिए, बस मैसेजेस होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कीप योर हेड कूल। अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने 4 लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, फेस कीजिए, एंड देन कीप योर हेड कूल। Female security is a big question for all of us now. We are so insecure for our teenage girls and boys. So what we can prepare for, how we can prepare our kids, like teenage girls and boys, for their self-defense. बोर्डिंग में भेजते हैं बच्चों को, we are scared कि हम बच्चों को बोर्डिंग में भेजें कि नहीं भेजें। हाँ, तो हमें देखो बच्चों को 2 चीजें बतानी है। पहली बात तो हमें उसको मेंटली स्केयर करना है
कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आपको डरना नहीं है, और आपको उनको टूल्स देने हैं, डूज एंड डोंट्स की। जैसे मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन कि आपको सड़क पे बच्चों को बताना है, जब आप सड़क पे चलो, ट्राई नॉट टू यूज मोबाइल। ऑलवेज जब वो कैब में बैठते हैं, उनको आप बोलो लेफ्ट की जगह आप फेसिंग द ट्रैफिक चलो, क्योंकि वो लेफ्ट में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, बस्ता टंगा हुआ है, फोन पे बात करते हैं। बिकॉज क्रिमिनल्स आर लुकिंग फॉर लूप होल्स एंड दी वल्नरेबल पीपल। क्रिमिनल मैं देखिए जब सड़क पे चलती हूँ तो मैं, लड़कियां नॉर्मली कैसे ऐसे डर के जाते हैं, कोई पीछे रहा हम ऐसे हो गए। सो आई एम लुकिंग फॉर समबडी जिसके शोल्डर डरे हैं, डरा हुआ लग रही है, तो डरे को लोग डराएंगे। और मैं ऐसे जा रही हूँ, हाँ भाई क्या है, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो इट्स लाइक बॉडी लैंग्वेज। तो हमें अपने बच्चों को सशक्त बनाना है, टीन्स को हमें वल्नरेबिलिटी से बताना है। देखिए पहले तो उसको आपने ये सिखाना है कि वो सावधानी रखे। जैसे मैंने बोला, अगर बच्चा टीन्स है, अगर हम लड़की की बात करें तो हम लड़की को तो बता ही देते हैं कि भी रात को मत जाओ, ऐसा मत करो, वो करो। हमें लड़कों को भी बताना है कि बेटा टाइम पे अगर आप कहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो सकता है ड्रग्स ले रहे हो, सिगरेट ले रहे हो, कुछ दोस्तों के साथ ड्रिंक्स ले रहे हो, अब्यूज हो रहा है, कुछ गलत संगत में पड़ गए, तो हमें लड़कों को भी उतना ही संभाल के रखना है। हमें उनको ये, मैं सबसे बड़ी बात है कि ये मैंने बोला है कि ऐप डाउनलोड करवा दो, उनको बताओ कि जब कुछ गड़बड़ हो तो आप 112 को फोन करें। इस ऐप में भी सारी कॉल्स है, कुछ ऐप डाउनलोड करो, कुछ लोकेशन शेयर करने के लिए बोलो, क्योंकि देखो आपको बाहर भेजना पड़ेगा, बट उनको वल्नरेबल नहीं बनाना, वो आपको सिखाना पड़ेगा कि बेटा आप कोई भी चीज है, जो खासकर टीन्स है, टीन्स बहुत ही वल्नरेबल एज होती है। पहले तो आप उनको बॉडी के बारे में बताइए, उनको डूज एंड डोंट्स के बारे में बताइए कि बेटा कोई भी ऐसा काम मत करना। तो आपको हर सावधानी से बचाना है, लड़कों को खासकर। ये छोटी कढ़ाई में थोड़ा अच्छा तेल तो फिर छोटी कढ़ाई। हमें अपने बच्चों को बहुत सावधान, हमें लड़कों को भी बताना है कि भाई किसी भी चीज को आप वो करो, ध्यान से करो। तो हमें टीन्स को बहुत ही सुरक्षित रखना है, खासकर साइबर बुली से, पीयर प्रेशर। बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा आपको, बच्चों से बातें करनी पड़ेगी, बच्चों को अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बच्चे झूठ बोलेंगे। यू हैव टू ट्रस्ट देम, यू हैव टू लिसन टू देम। नॉर्मली हमारे पास टाइम नहीं होता बच्चों को सुनने के लिए। देखिए जब बच्चा छोटा होता है 5 साल का, हम बच्चे को बोलते हैं पड़ोसियों के सामने गाना गा के सुनाओ। देखो मेरा बच्चा कितनी अच्छी पोएम गाता है, डम्पी डम्पी, यू नो वन से, है ना, हम करते हैं ना, सारे बच्चों को जो पोएम सुनवाते हैं, बच्चा डांस करता है, सुनो सुनो मेहमान है डांस कराओ। वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है 10 साल का, तो आपके पास आता है अपने डिजायर्स लेके किसी भी तरह के, आप बोलते जा तंग मत कर भाग जा, यू नो, उस समय आपको सुनना है। खासकर टीन्स में आपको उसका दोस्त बनना है, उसकी ध्यान रखना है। अगर बच्चा आपका लॉस्ट है, बातें नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको प्रेशर है। बच्चों को हमसे ज्यादा पीयर प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है कि दोस्तों ने ऐसा पहना वैसा पहना, आप उसे बात करो। आपके पास एक ही रेमेडी है, टू बी देयर फ्रेंड। उनको अवगत करो, सावधानी बताओ, डूज एंड डोंट्स दो हाथ में। जैसे मैंने बोला, उनको बताओ कि वाटर की बोतल से भी आप फाइट बैक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ बच्चों के लिए, अभी हम थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस करेंगे। मान लीजिए पहला बात तो अपने बच्चों को बोलना है कि लेफ्ट पे ना चल के सड़क क्रॉस करें, राइट पे चलें, सामने ट्रैफिक को देखते हुए चलें, क्योंकि जब हम लेफ्ट पे चलेंगे पीछे से कोई भी आएगा मुझे पता नहीं चलेगा। हमेशा उल्टे साइड पे चलें, सीधे हाथ से, जहां से गाड़ी सामने आ रही है, आदमी लोग सामने आ रहे हैं, और हमेशा एक हाथ की दूरी सड़क से बना के रखें। और जो बॉडी, अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए। बेसिकली बच्चों में 2 चीजें ध्यान रखनी है, मेंटल सेफ्टी, फिजिकल मतलब उनको इतना फिट रखो कि वो खाना टाइम पे खाएं, सोए टाइम पे, किताबों में उनको किताबों से दोस्त बनवाओ, किताबें पढ़वाओ। ये नहीं अपना टाइम पास करने के लिए, अरे मैं बिजी हूँ, किट्टी में हूँ, घर में मेहमान है, यूट्यूब देख लो बेटा, जाओ गाना सुन लो, यू नो। जो भी वो करता है उसको इन्वॉल्व करो, बातें करो। सेल्फ डिफेंस के बारे में जरूर कुछ ना कुछ को मार्शल आर्ट जरूर सिखाओ। 5 साल से ही बच्चों को मार्शल आर्ट में डालो, उससे क्या है कि बॉडी में फिटनेस आती है, बच्चा डिसिप्लिन में सीखता है। आप उसको 5 साल से ही डाल दो, कराटे में डाल दो, कोई भी मार्शल आर्ट, कोई फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में डालो, क्योंकि उसको भागना बहुत जरूरी है, बच्चे को भागना बहुत जरूरी है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा म्यूजिक लगाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर वीडियो एंड स्टैंड लाइक, मेरा आप पूरा बॉडी देख पा रहे हैं, मैं इसको स्पीकर व्यू पे कर देती हूँ। सर मैं एक वर्कशॉप में कॉल करूँ आपको 10 मिनट में? ओके, आप ये देख पा रहे हैं मेरा पूरा? ओके, तो अभी हम थोड़ा सा बॉडी अपने आप जो भी वर्कआउट करना है, आप पानी अपना साथ में रख लीजिए,
और पानी मतलब बॉटल रख लीजिए। तो बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी जो बॉडी है उससे आप कैसे फाइट बैक कर सकते हैं। फर्स्ट आपने लेफ्ट पे जाना है, बिल्कुल अलर्ट होके चलना है, बॉडी पोस्चर आपका कभी भी झुका ना हो। और आपको ये जैसे मैं ये आपकी जो पूरी बॉडी है, ये आपका जैसे डांस करते हैं या हम कपड़े धोते हैं, तो मैं आपको 2-3 एक्टिविटी बताऊंगी लेडीज है, आप अपने इन चीजों को कैसे मजबूत करना है। जैसे हम ये कपड़े वॉश करते हैं या आटा गूंथते हैं, घर की बेसिक चीजें आप याद रख सकते हैं, वो आप स्टेप करेंगे। तो बेसिकली ये मेरे 2 हाथ हैं, देखिए हम लोग सीधे खड़े हो जाइए ऐसे, ओके। और एक पैर ऐसे राइट पे खोलेंगे, एक लेफ्ट पे खोलेंगे। मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पहले रिकॉर्डिंग थी उसको बंद, मैं 1 मिनट इसको कर लेती हूँ रिकॉर्ड, ताकि ये अब ऑलराइट। तो आपने एक पैर ये खोला, एक पैर ये खोला, ठीक है। ये आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, मतलब आप जैसे डांस करते हैं आपको ये आना चाहिए, यानी कि आपका ये एक हाथ है, ये ब्लॉक है। जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने आ रहा है, स्टॉप, तो आपका ये है स्टॉप, आपने ये स्टॉप किया और यहां से मारा, स्टॉप एंड मारा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रुचिका आप वो गाना चला दें थोड़ा सा। मैं पहले हम लोग वार्म अप करेंगे अच्छे से म्यूजिक पे, आप उसको म्यूजिक एंजॉय करें। हम लोग जब तक थोड़ा सा अपने हाथों को ऐसे कर लें, तब तक ऐसे ऐसे करते रहे अपने हाथों को। पानी की बोतल आपके हाथ में है, सब लोग पानी की बोतल अपने हाथ में ले लीजिए, ओके। आप तब तक ऐसे ऐसे हाथ हिला लीजिए, थोड़ा सा जैसे वार्म अप करते हैं, रनिंग कर लीजिए। This फर्स्ट वीडियो, this one? हाँ लिखिए जो खत में जो हल्का सॉन्ग है, Yes. Okay. दोबारा से शुरू, शुरू से नहीं है ये, ओके। Okay. नहीं आई थिंक शुरू से नहीं है, आगे निकल के थोड़ा पीछे करो। Yes. ओके सब, ये थोड़ा थोड़ा हम पहले वार्म अप करेंगे। ऐसे सब कीजिए ऊपर, आवाज तेज कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही। फिर स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग कीजिए। ऐसे कीजिए, शोल्डर को मूव कीजिए, शोल्डर को आगे की तरफ।
पीछे हाथ करके। स्क्वाट्स करेंगे, स्क्वाट लाइक हल्का हल्का ही लेंगे। ओके, नाउ अब इसको हम ब्रीदिंग की तरफ जाएंगे। अभी हम सिर्फ बॉडी की वार्म अप कर रहे हैं। अंदर, बाहर, बाहर। ओके, अब दूसरा गाना लगा देंगे, थोड़ा फास्ट वाला। जितने भी बच्चे या जो भी है आपके हाथ में बॉटल जो थी, आप उसको एक हाथ में लेफ्ट में रखेंगे। इससे हम ये पंच करेंगे, ये ब्लॉक। तो कोई आपके सामने आता है तो आपने ब्लॉक करना है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। जैसे हम डांस करते हैं, ये ब्लॉक और ये अटैक, ब्लॉक अटैक। ओके, इस तरह के हम करेंगे गाने पे। गाना दूसरा लगा दो। मैं कोशिश करूं। Started. थोड़ा तेज कीजिएगा। Okay, good music. ओके, जंप। फिर सब जंप कीजिए। Oh, it's a thing, na? Just a moment. सो बेसिकली इसमें आपको पंच लेके आगे आना है वार्म अप के लिए। Yes, Okay. yes, yes. और ये ओके, पीछे जाएंगे। ये पहला देखिए, ये है, आपने पहले 1 सामने मारा, ब्लॉक, फिर ये अपने अटैक, ब्लॉक, अटैक, ऐसे कीजिए, फास्ट, ब्लॉक, अटैक, ब्लॉक, अटैक, म्यूजिक के साथ 1 2 3। इट्स लाइक कपड़े धोते हैं, कपड़े धोना, ऐसी चीजें कपड़े धो रहे हैं। आवाज नहीं आ रही, मैं चलाऊं गाना क्या? कोई नहीं, पंचिंग ओके, कपड़े धो यार, कपड़े धो। म्यूजिक नहीं आ रहा। पंच ब्लॉक, पंच ब्लॉक, पंच ब्लॉक, पंच ब्लॉक। मैं लगाती हूँ, आप रहने दीजिए, मैं लगाती हूँ म्यूजिक, आप बंद कर दीजिए। माइक है सर, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ, ओके। अब थोड़ा वार्म अप। पहला आवाज जैसे कपड़े अपने ये ब्लॉक, it means block. Left hand.
जैसे आप ब्लॉक ही करें ऐसे कीजिए घूमिए पाँच रोटी बन गई? बाकी सब बन गई। नीचे से चलिए मटर पाँच की जा रहा सब्जी है बनाई, बैंगन की सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, मतलब पापा बाल कटाने गए। Okay, now I'll put a last music. Okay. एक लास्ट सॉन्ग करेंगे जिसमें मैं आपको उसके बाद फिर मैं आपको वो बताऊंगी कि हम इस म्यूजिक को कैसे यूज करते हैं डे टू लाइफ। चलिए लगा दें। मैं आपको एक लास्ट सॉन्ग उसके बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सो बेसिकली सेल्फ डिफेंस जो है वो रिफ्लेक्सेस ऑफ योर बॉडी कि आप बॉडी को कैसे हिलाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नथिंग एल्स। क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी आप मार्शल आर्ट कर लो, आपकी बॉडी में ऐसी जब हम डांस करते हैं तो ये आपका ऐसे आना चाहिए। जब आप अटैक करते हो, देखिए जब मैं अटैक करती हूँ तो मैं ऐसे मारती हूँ ब्लॉक। देख सामने आप, जैसे कि ये मेरे को इधर से अटैक कर रहे हैं, जैसे हमने जो नाइफ का देखा, एक मिनट, ये मेरा नाइफ है। हम जो इसको हाथ को कैसे यूज करते हैं, ओके यहाँ से तो ये नाइफ कर, मान लीजिए ये मुझसे बड़े हैं, ये मुझे ये नाइफ इनके हाथ में है तो ये नाइफ मार रहे हैं ये, ठीक है। तो जो हमने पहला किया था टाकी वाला, तो देखिए मेरा हाथ, मैं सीधे खड़ी हूँ, इन्होंने नाइफ मारा तो मैंने ये किया, ओके। तो मेरा हाथ आया ऐसे, तो मेरा ब्लॉक कैसे जा रहा है आगे, अरे यार इधर इधर, नहीं 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 तो इधर आ थोड़ा। देखिए ये हाथ कैसे जा रहा है मेरा, ब्लॉक नाइफ, ये ब्लॉक, ये नाइफ है ब्लॉक, ओके। तो इन्होंने मुझे ब्लॉक किया, ब्लॉक रखना, ये ब्लॉक किया, तो मेरी कमर यहां से मैं खड़ी थी, सामने नाइफ आया, ब्लॉक किया मैंने, ओके। और उसके बाद दूसरे हाथ से जो पंच था इनको रोका, तो मेरा ये गया। तो हम प्रैक्टिस करेंगे ब्लॉक पंच बैक, ओके, सी ब्लॉक एंड पंच बैक। फिर जो दूसरा गाना अभी मैंने आपको कमर का बताया, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं गाना चलाती हूँ जो शक पकड़ो, हाँ, मान लीजिए मुझे पीछे से, जब मैंने कहा था पकड़, मैं पीछे जाया तो मुझे पीछे से पकड़ा, तो इसमें हम जब गाना चलाएंगे शकीरा वाला, देखिए इन्होंने मुझे पकड़ रखा है, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथ पे बैग है और इसने मुझे पकड़ के किडनैप किया, तो मैंने यहाँ बैग खींचा और इसको पूरा घुमा दिया, राइट। तो ये पकड़े पकड़े शकीरा मूव पे हम अपने इसको पकड़ो, ये मान लीजिए कस की पकड़ा है, इसने मुझे उठाना चाहा, जो बच्चों के साथ वल्नरेबिलिटी बात किडनैपिंग, तो मैं इसी गाने पे पूरा इसको घुमाया, तो जैसे इन्होंने पकड़ा है, मुझे कस की पकड़ा ही नहीं छोड़े, तो मैंने पूरा घुमा, ऐसे घूम गया लाइक दिस, ओके। दूसरा, अगर कोई मुझे पकड़ता है कस की पकड़ा, तो मैंने कहा ओके ओके व्हाट यू वांट, हम नीचे बेंड किए, ये देखो ये टॉल है, देखो खड़े रहो, ये मुझसे टॉल है, तो आप ये मत सोचो कि हाइट का फर्क पड़ता है, जो टॉल इंसान है वो मुझे कंट्रोल करने में खुद ही झुकेगा। तो इन्होंने, ये टॉल है, इन्होंने मुझे उठाया है, किडनैप करा, इन्होंने खुद ही कुछ झुक गए। अब ये झुके हैं तो मैं इजीली पहुंच सकती हूँ, तो मैं थोड़ा सा बेंड किया ऐसे, मेरे पैर सीधे थे, बेंड किया, मैंने बेंड किया तो ये भी आगे, तो मैंने ये अपनी एल्बो स्ट्राइक की, यहाँ से पकड़ा,
ओके व्हाट यू वांट, हर चीज में आपको ये करना है, अच्छा जी आपको क्या चाहिए उसकी, ठीक है ठीक है ठीक है ना, आपने एक्ट करना है, थोड़ा डाइवर्ट करना है, जैसे ही वो कंट्रोल में हुआ टक, और फिर आपने एल्बो स्ट्राइक करके इसको छुड़ाया। तो ये जो मैं अभी म्यूजिक चलाऊंगी, इसमें आपको ये दिखाऊंगी कि इस म्यूजिक से आप कैसे बॉडी को घुमा सकते हैं। हाँ, शुक्रिया। Okay. ओके आप ऐसे घुमाइए, ये आपने ये घुमाया। Okay, I think time is up, so I guess we don't have time, so I just okay. I think I'm done because time की limitation है, तो बाकी की आप मैं all right कर ले। So I think time की limitation है। मुझे बोला गया है कि टाइम ज्यादा हो गया, मैंने बोला ही था पहले कि इतने 1 घंटे में सेशन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारी चीजें करने वाली हैं। तो ओवर टू यू, आप इसको जैसे भी खत्म करना चाहते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे, फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और एक ग्रुप पिक्चर मैं चाहूंगी हमेशा अपने ऑडियंस के साथ खींचने का, तो सारे लोग वीडियो ऑन करके एक पिक्चर कोई भी ले सकता है, वो मुझे भी शेयर कर दीजिए। So over to you. Thank you so much, Veena ma'am. It was lovely time with you. We need to learn lots from you. You are an impressive personality and an inspiring one for all of us, and even for our children. And we are Thank you all. definitely going to keep our children in sports, martial arts. I think this is the need of the hour, because our children must learn, and even I think we also must take the initiative and Yeah. love for our defense. Thank you so much for being here with us. It was a lovely session, very inspiring, very knowledgeable. Thank you once again. So grateful to you for taking out the time for all of us. Thank you all for participating, and over to Honorary Club Secretary Charu ma'am for club announcements and vote of thanks. उनकी वॉइस नहीं आ रही है, आई थिंक यू हैव टू अनम्यूट। अनम्यूट कर लीजिए आप। चारू मैम, आप खुद अनम्यूट कर लीजिए, आपकी म्यूट है। हाँ, नाउ इज बेटर। एक पिक्चर का देख लीजिए कौन पिक्चर ले रहा है, ग्रुप का पिक्चर सारे वीडियो के साथ। अंकित यहाँ पे आप फ्रेम में आ रहे हो, चले जाओ पीछे वाले रूम में, पीछे। और सभी लोग प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। वो आ रही है, जूते हटाओ ऐसे। सभी लोग प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। आई एम गोइंग टू टेक अ पिक्चर। सुभाष भैया, ऋषभ भैया, प्रिया भाभी, विशाल भैया, पार्थ, विभा। मौसी घर करून घ्या ना पहिले। प्रमोद भैया, वीडियो प्लीज।
Okay, thank you very much. Friends, just before I give the official vote of thanks, I would like 30 seconds of silence. We have lost a father of past president Rotarian Kishore Tauri, Manohar Lalji, and we would keep a silence उनकी आत्मा को शांति मिलने के लिए 30 seconds. Please raise on your place wherever you are. Please stand and we'll have a silence for 30 seconds. Thank you. Today's session by First Lady of, you know whom I have heard, a wonderful, a dynamic session of today by Miss Veena Gupta. Really wonderful to have a session with you. You have really given in the time of hour the tips and tricks and the abuses that can occur even at home and online, which we never think of as a mother. Being a doctor, I could never think. So I'm really happy. Shanian's got a new thought. And thanks that Sharad Bhaiya always said that, you know, it would be a family who can do this. And at least my family was totally involved into what things you taught us. And रास्ते पे कैसे चलना है, घर पे कैसे बिहेव करना है, फोन पे क्या एटीट्यूड रखनी है, कितनी बातें करनी है, किसके सामने बातें करनी है, इतने सारे जो आपने टिप्स दिए. Veena, thank you. You're so glamorous, so gorgeous, so wonderful. I mean to say, I really don't have words. You know, your skin, your tone, your everything speaks volumes about you. मेरी एज के बारे में मत बताना किसी को. आई एम 51, so ये मैं खुद बता देती हूँ, इसलिए मैंने बताया है ताकि आप लोग भी इस उम्र तक ऐसे ही रहे. मेरी बेटी 24 साल की है, तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग फिट रहें, खुश रहें. यही एक मंत्रा है आई थिंक फिट रखने का, कि खुश रहें, स्ट्रेस ना रखें. इब्रू गेट लॉस्ट. वीना, आपको देख के ना सारा इंस्पायरिंग चीजें हैं. एक तो फर्स्ट लेडी जो अटैच है, और मैंने एज अ डॉक्टर बाकी सारे देखा है, लेकिन मैंने मेरे ड्रीम्स में भी यही नहीं सोचा था कि एक लेडी बॉडीगार्ड जो इतना अलर्ट है, आपका ओन सिस्टम है, आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करती है. हैंड्स ऑफ टू यू. मैं कितना भी सलाम आपको करूं या शुक्रिया करूं, वो वर्ड्स आपके लिए छोटे हैं. जो आप कर रही हैं विमेन के लिए, बच्चों के लिए, इवन बॉयज के लिए, मेन के लिए, तो आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. हैंड्स ऑफ टू यू. वहां रहती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है और दूसरों को भी सिखाती है. सो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ इसके लिए. हम कोई वर्कशॉप सेशन जरूर अगर प्लान होता है तो आपको कांटेक्ट करेंगे. और जो हमारे सूत्रधार है इसमें कोऑर्डिनेटर सुनीता नबीरा, वेरी गुड फ्रेंड अगेन एंड ऑलवेज यू नो एंथू, और हमेशा हमारा सहकार्य करती रहती है. हमारे वंडरफुल एमओसी कपल आज दोनों, मनोज एंड रुचिका जयसवानी, उनको खूब खूब धन्यवाद चाहती हूँ. उन्होंने इतना कोऑर्डिनेशन किया. सारे हमारे ईशानियंस जिसके बिना ये हमारा प्रोग्राम हमेशा अधूरा रहता है. हमारे आईटी ऋषभ भाई जो हमेशा तैयार रहते हैं. हमको कोई भी आईटी लेवल पे कोई भी तकलीफ होती है, रिकॉर्डिंग्स है, कोई एडजस्टमेंट है, पहले वॉइस टोन सब करवा लेते हैं. हमारे क्लब एडमिन सीसी रोटेरियन शरद टावरी जो हमें नए नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नए नए लोगों से मिलवाते हैं, और हमारे आईक्यू लेवल्स और हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाते हैं. हमारे आज के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष लाहोटी भैया, एंटायर टीम ऑफ माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ. लास्ट वीक हमारे जो सेरेमनी हुआ था 2 दिन पहले, डेडिकेशन सेरेमनी, जिसमें हमने सिर्फ एक धन्यवाद सब हमारे ईशानियन को, ये क्लब अनाउंसमेंट में आता है वीना जी, कि प्रमोद आचार्य भैया, हमारे मुख्य सूत्रधार मुस्तफा भैया, ऋषभ भाई, उत्कर्ष शाह, अमित अग्रवाल, डॉक्टर उत्कर्ष शाह, डॉक्टर अमित अग्रवाल,
डॉक्टर सुबोध गुप्ता सर, जिनका आज वर्षगांठ और बर्थडे भी है, उनके शुभकामनाएं। जो हमारे ऋषभ भाई, प्रेसिडेंट सर प्रीतेश चांडक और जॉइंट सेक्रेटरी मनीषा राठी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमने इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं ये थर्ड कोविड वेव में, जिसमें मल्टीपैरास है, स्पाइरोमीट्री है, सिरिंजेस है, ये हमने 2 संस्थाओं को दिया है। SVMM स्वामी विवेकानंद मिशनरी ट्रस्ट को दिया है, और महान मेलघाट, उनको ये इंस्ट्रूमेंट्स ये थर्ड वेव के लिए दिए। जो हमारा संचालन करने वाले DG सर थे रोटेरियन रमेश मेहर और AG CA कपिल भारी, खूब खूब धन्यवाद। ये जानकारी हमारे ईशान्य फैमिली के लिए थी। आज के बर्थडे हैं हमारे रोटेरियन डॉक्टर सुबोध गुप्ता, रोटेरियन महेश लाहौटी, रोटेरियन कल जिनकी वर्षगांठ है, रोटेरियन कपिल राठी, रोटरियन भारती भैया, रोटरियन वंदना सेठिया, उनके बर्थडे है। और इससे मैं धन्यवाद करती हूँ सबको, एंड ऑफिशियली आई थैंक ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड द मीटिंग इज अडजर्न्ड। सॉरी टू एक्सक्यूज, सॉरी। मैं चाहूंगा कि वीना जी भी एक सोशल NGO चलाती है खुद का, ठीक है, अगर कुछ वो हाईलाइट कर पाए कि वो क्या एक्टिविटीज लेती है, सो दैट कि हमें भी शायद कहीं कुछ बेनिफिट मिले, तो 1-2 मिनट हम लोग उनको भी सुनेंगे प्लीज। थैंक यू। जैसे कि मेरा NGO है, इसका नाम है WESS वुमेन एम्पावरमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि ये मेरा पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, तो मैंने उसके अंतर्गत ही पुलिस के साथ ये ऐप ये लॉन्च किया था। यहाँ पे हम एक मेंटल और इनर हेल्थ के बारे, सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका पंच लाइन है, हमारी हिम्मत हमारी शक्ति। इसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, फायर सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। मैं नागपुर में काफी बार आई हूँ, क्योंकि मैं FSCI से भी जुड़ी हुई हूँ, फायर सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत, इन दोनों के अंतर्गत मैं काफी ट्रैवल भी करती हूँ, और जहाँ भी ऐसा कोई मौका मिलता है कि जहाँ पे हम काम कर सके सोसाइटी के लिए, तो हम लोग सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप देते हैं, सेंसिटाइजेशन करते हैं, जो भी रेलेवेंस होता है, निर्भया डे होता है। हम काफी सारे गुड़गांव की मतलब जितने भी लोकेलिटी के, क्योंकि हमारी जो NGO है हरियाणा में नियुक्त है, हरियाणा एक्ट के अंदर आती है, तो हरियाणा में जितने भी क्षेत्र हैं, अदर देन हरियाणा ऑल्सो, पूरा ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया बेसिस पे जहाँ पे भी मौका मिलता है, कोई इनवाइट करता है, तो हम लोग खासकर मैं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट एंड फाउंडर भी हूँ, मेरा NGO है, तो हम लोग फ्री कैंपेन करते हैं, वुमेन सेफ्टी की, सेल्फ डिफेंस की, कार रैलीज करते हैं हम लोग, और हम एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं। एक मेरा बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड शी टॉक्स। तो जो शी टॉक्स है, उसके अंतर्गत हम जितने भी शी टॉक्स, मतलब आपको प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप मान लीजिए एक साधारण सी हाउसवाइफ है, या फिर आपके अंदर बहुत टैलेंट है, तो हम आपको वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप उस प्लेटफॉर्म पे टॉक करें, और इट्स लाइक अ टेड टॉक कि आप इंस्पायर हो। तो इट्स लाइक शी टॉक्स है, मैं उसको काफी ऑनलाइन भी करती हूँ, तो कभी भी आप चाहें तो वहां पे कोई भी जो जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलना बोलने के लिए, तो वो शी टॉक्स पे उस पे बात कर सकता है। तो दैट इज वी कॉल शी टॉक्स। और तो ये है, और बस यही सब चीजें हैं। एक है हमारे आदमियों के लिए सीरीज है, इसका नाम है मूछ की बात, मैन ऑफ ऑनर, क्योंकि वाह, तो मैन के लिए भी हम बात करते हैं कि मैन ऑफ ऑनर, क्योंकि जब तक हम आदमी सुरक्षित नहीं होंगे, वो अपने परिवार को कैसे सुरक्षित करेंगे, क्योंकि हम लोग मैन के ऑनर की बात करते हैं। मेरा एक टेड टॉक है कि एक्यूज कैन बी विक्टिम की, बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया था कि हम हमेशा आदमियों को गलत समझते हैं, तो उनकी सुरक्षा के बारे में भी, क्योंकि देखिए जो झूठे केसेस होते हैं डॉरी के या घरेलू हिंसा के, आप सब लोग को पता है कि आजकल बहू, मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते, बहू को सफाई करने के लिए भी नहीं बोल सकते, तो वो सीधा बोलते हैं मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तो उसमें काफी सारे लोग शिकार हो जाते हैं। अगर किसी को डिवोर्स चाहिए होता है, तो वो झूठे केसेस मतलब बहन भाई नंदों पे लगाते हैं, तो ऐसे में हम लोग उनको मदद करते हैं। और बेलन बेलन जो आप दिखा रहे हैं, वो एक NGO है, बेलन मुक्ति। तो बेलन मुक्ति में जो ड्रग्स के एडिक्टर होते हैं आदमी लोग, उनको हम ये काफी सारी संस्था के साथ जुड़े हैं, बेलन अभियान की, उनको हम सिखाते हैं कि भाई आप ड्रग्स छोड़ो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मेन की काउंसलिंग करते हैं, और उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखिए वो किसी का भाई हो सकता है, किसी का बहन जीजा कुछ भी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। तो ऐसे भी हैं कि हर किसी की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो कि डॉरी जो डाइवोर्स के केस को लड़ रहा होगा 10 साल से, 12 साल से, 9 साल से, दोस्तों में, पड़ोसी में, मोहल्ले में। तो ये हमारी जो समाज की समस्या है, मैं उन सब से लड़ती हूँ और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ऑनलाइन। बस
यही 2 मिनट का काफी है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। आई थिंक आई एम वेरी पैशनेट ऑन दिस सब्जेक्ट। तो जितनी मैं वुमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी के लिए पैशनेट हूँ, उतनी अकम्प्लिश्ड मैं आदमियों की सेफ्टी के लिए भी, बच्चों की, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हमें लगता है हमारे साथ कुछ नहीं होता, बट ऐसे 70% केसेस में, बट सिर्फ हमारा है सोशल स्टिग्मा की छुप के लोग आते हैं मुझसे काउंसलिंग करवाने की, लोगों को ना पता चले, लोगों को मत बताना, इससे सोशल स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में है, स्टीरियोटाइप की हम कभी बोल नहीं पाते, आदमियों के साथ भी अत्याचार होता है। तो मैं उस लाइन पे भी काफी काम करती हूँ टू प्रोटेक्ट एवरीवन, ताकि हम एक इक्वलिटी पे आ जाए। और हम जब बात करते हैं एम्पावरमेंट की, तो एम्पावरमेंट का मतलब है हम सब इक्वल हैं, कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं। तो मैं चाहती हूँ, एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों को एक सीख दीजिए, टू बी नाइस ह्यूमन देन ए बॉय एंड गर्ल। आप उसको एक अच्छा इंसान बना देंगे ना, ग्राउंडेड पर्सन बना देंगे, आई थिंक उस दुनिया को जीत लेगा। कोई कुछ भी करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उसको अपने दिल की इच्छा पूरी करने दीजिए। जस्ट वन थिंग यू शुड टीच, हाउ टू से सॉरी एंड ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। अच्छा इंसान खुद ही बन जाएगा। आप रोटरी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये काम और कीजिए, हर इंसान को अच्छा इंसान बनाइए, और ग्रेटिट्यूड हमेशा हमें रखना चाहिए। थैंक यू। वीणा जी, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और हाँ? करना चाहूंगा कि कैसे हम लोग, जैसे वी आर ऑल्सो फ्रॉम रोटरी, तो रोटरी हाँ। से हम लोग हमेशा सोसाइटी की हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, इस पे हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो अगर राइट। आपके दिमाग में कहीं कुछ आता है कि हम लोग इस जगह पर हेल्प कर पा रहे हैं, या इस तरीके से हम लोग कोई प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं, तो प्लीज हमें अपडेट कीजिए। विल बी वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विथ यू। आई एम श्योर, आई थिंक आपके वहाँ जो छोटे छोटे जो अंडर प्रिविलेज स्कूल है, जिसमें लड़कियों के साथ बहुत, मतलब यहाँ पे बहुत वल्नरेबिलिटी है, बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज होता है, तो आई थिंक उस पे अगर आप काम करेंगे तो आई बी हैप्पी टू ज्वाइन हैंड्स की हम लोग कैंपेन कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट चला सकते हैं गाँव में, नुक्कड़ में, मतलब आपके आपके शहर से कहीं भी 40 किलोमीटर या विद इन द दायरा, अगर छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां पे हम 1 साल की ऑनलाइन कैंपेन चला लें। फिजिकल भी, खैर आजकल तो मेरा क्या होता है कि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, मेरे ऑफिस पैन इंडिया है, तो जब भी मैं उस साइड पे आऊँ, बॉम्बे से नागपुर बहुत पास में है, तो मैं आपको बता दूंगी, अगर ताकि आपका खर्चा ना बढ़े, ज्यादा खर्चा ना हो मुझे बुलाने में, तो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप लो कॉस्ट, सो दैट कि हम लोग कॉस्ट पे ज्यादा पैसा खर्च करें। और हम लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे भी CSR फंडिंग है जो हम लोगों से लेते हैं। तो मिलके आई थिंक आप अगर इसको चलाएं, बच्चों के लिए, बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसके बारे में आई एम ऑलवेज विद यू। बिल्कुल, विल बी इन टच विथ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए फोटो ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे गेट पे कोई फोटोज खड़ा आपके है। ले चुका हूँ, आपको फोन अच्छा। पर भी भेज चुका हूँ मैं। अच्छा, और ये ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, चलिए फिट रहिए, खुश रहिए। स्ट्रेस के लिए एक और बिल्कुल। टिप दूंगी, बस गाने जो है, जो जिनको, इनसे आपको सुन के मोहब्बत हो जाए, तभी मैंने वो गाना लिखाया था, लिख के जो खत तुझे। सबकी मेमोरी याद हो गई अपने पुराने टाइम की, मैंने, हम जब अपने लिए प्रेम खत लिखे होंगे, तो ऐसे म्यूजिक से जुड़िए और मेडिटेशन कीजिए, और बस खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो समाज को खुश रखेंगे। बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच, आई गॉट टू गो। Thank you so ओके। much. थैंक यू।